Thank you, sir. Just as a healthy soil provides the foundation for the growth, the quality of the seed we plant determines the strength of our harvest. So, Jai Hind and good evening to everyone present here. A very warm welcome to Day 10 of Society for Agricultural Advancement, Research, Training and Human Innovation. Knowledge Revolution in Agriculture Nurturing, Technology and Innovation 2026. Our 30-day National Agricultural Training Program. On behalf of Agri Sarthi, it is my immense pleasure to welcome all the participants are esteemed resource person for today. My name is Chatrisha and along with me, Mr. Rohit will be representing Agri Sadi team and guiding you throughout today's session. We are privileged to have with us Dr. Ramesh Kumar sir, a distinguished scientist and expert in maize breeding and biofortification, who will be sharing his valuable knowledge and experience during this session. I also extend a warm and respectful welcome to our organizing director Ajay Kasana sir, Chief Secretary of Agri Sarthi Kranti 2026. This is the brainchild of Ajay Kasana sir, and he has aimed at revolutionizing agricultural education in India by creating knowledgeable platform which integrates science, sustainability and practical learning. Through this program, AgriSadi is consistently making efforts to empower learners and professionals. So as yesterday's session, we have mainly focused on caring the soils, emphasizing the importance of soil health in sustainable agriculture. Dr. Anil Kumar Singh sir has highlighted the soil erosion as a major environmental concern and underscored the critical link between soil conservation, food security, and climate action. Building upon this foundation, today's session advances into crop improvement and nutritional security. Today's topic is for maize breeding and biofortification. Maize is the most important cereal crop globally. Advances in maize breeding and biofortification plays a vital role in enhancing yield, nutritional quality and resilience to biotic and abiotic stresses. So we are extremely honored to have Dr. Ramesh Kumar sir with us today, the principal scientist in plant breeding in Indian Institute of Maize Research, Punjab, and Agricultural University campus from Ludhiana. And also, sir is the vice president of Agri Sardi. Dr. Ramesh Kumar sir has over 20 years of research experience in plant breeding with focus on maize and cotton. He is currently working on breeding for quality protein maize and biotic stresses from tolerance in maize. He is a life member of Maize Society and Indian Institute of Genetics and Plant Breeding, New Delhi. Previously, he has served as Senior Technical Officer at Protection of Plant Varieties and Farmers' Right Authority NACS Complex, New Delhi. Dr. Kumar sir has developed 32 notified hybrids in field corn, popcorn, and diploid and tetraploid cotton. And registered 11 germplasm in maize and cotton. He has been awarded the Best Scientist Certificate ICAR Indian Institute of Maize Research 2020 and the Best Principal Scientist Certificate Award in 2022. He has published one single book and 19 book chapters and 120 research papers in high impact journals. We are truly privileged to have Dr. Ramesh Kumar sir with us today. With great respect, now I invite him to share the insights on maize breeding and biofortification. Over to you, sir, please. थैंक यू चत्रिशा एंड अजय एंड और आपकी टीम। आज का नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जैसे एक बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन देने के लिए चत्रिशा का धन्यवाद। एंड माय फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट biofortification in not only in maize but other crops also. What is that? Why we do it? इसकी जरूरत क्या है, हम क्यों करते हैं, और ब्रीडिंग के थ्रू इसका क्या रोल है, बिना ब्रीडिंग करें तो इसका क्या रोल है। थोड़ा थोड़ा मैं इन चीजों के ऊपर हाईलाइट डालूंगा। एंड इन द बिगिनिंग आई हैव रिक्वेस्टेड अजय दैट लेट मी नो द ग्रुप because I have to keep my language in control, either in English or Hindi. He said that it's okay. By mixing, we can go ahead. So thank you. आज हम इस बायोफोर्टिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और इसके अंदर क्या क्या करते हैं,
सबसे पहली बात, क्या बात भाई, सबसे पहली बात हम बात करते हैं माल न्यूट्रिशन की। माल न्यूट्रिशन की जब बात करेंगे तो हमारे पास पूरे वर्ल्ड का डाटा है। थ्रू आउट वर्ल्ड, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द ग्लोबल स्टेटस ऑफ माल न्यूट्रिशन? 2 billion people are suffering from malnutrition, micronutrient malnutrition. You can see this picture of the world. In this, you can see the different colors. 768 million people are undernourished. 768 मिलियन लोगों को अच्छा खाना नहीं मिलता है। उसकी जो नरिशिंग है, जो उनकी माल न्यूट्रिशन का इशू है, वो बहुत ज्यादा है। और जब हम बात करते हैं, when we are talking about the children which are who are having less than 5 years age, 150 million are stunted, उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं है। 45 मिलियन की हालात ये है कि उनको बिल्कुल लीन, उनके शरीर में जान नहीं दिखाई देती है। और 40 मिलियन के आसपास जो है इनका ओवर वेट है। वो ये नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा खाना है, क्योंकि वो गलत खाते हैं, प्रॉपर फूड नहीं मिलता है, तो उनका पेट फूल जाता है। 11% जीडीपी जो है एशिया की और अफ्रीका की, इसके ऊपर खर्चा करने के बावजूद भी हमें बहुत सम्मानजनक रिजल्ट नहीं मिलते। आप इधर देखोगे तो बच्चों के हालात क्या है अफ्रीका और एशिया में। जब बात करते हैं हम इसकी स्टंटिंग की, तो एशिया में ज्यादा है अफ्रीका से, 53%। और बात करते हैं वेस्टेड की, तो इसमें फिर 70% एशिया में। और जो ओवरवेट की बात है उसमें भी अप्रोक्सीमेटली 50% जो पॉपुलेशन है वो एशियन कंट्रीज की है। तो ये हालात हैं। फॉर दिस वी नीड बायोफोर्टिफिकेशन इन डिफरेंट क्रॉप्स। हम फसल के जो अनाज के अलावा जो खाते हैं, फल खाते हैं, दालें खाते हैं, अच्छा खाना जिनको मिलता है, वो एक कंबाइंड फूड बनता है। उससे हमारे जो प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। लेकिन ये जगह कुछ ऐसी हैं, देर आर सर्टेन कंट्रीज इन अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज वेयर दिस इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड द different spices, different pulse crops, or fruits and vegetables. Major portion of their diet is cereals only. जो अनाज है, अनाज ही उनके लिए सबसे बड़ी चीज है। भर पेट उनको अनाज मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। If we can improve the quality of that cereal, that will play a most important role in their life. उनके जो शरीर की जरूरतें हैं वो सबसे ज्यादा अनाज से पूरी होनी है। And you people all belongs to rural background. You know the real truth. A person who is not having any land, who is not having any regular government or a better private job, he is not having too much money to purchase these things. What he will do? डेली इसको काम करना है और पेट भरना है। उसमें उसको क्या मिलेगा, यह आप सब अच्छी तरह जानते हैं। यदि उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो खाना मिलता है, जो फूड मिलता है, जो आटा मिलता है, दाल मिलती है, वो प्रॉपर मिल जाए, न्यूट्रिस्ट फूड हो, अच्छा सीरियल हो, तो भी उसका काम चल जाए। लेकिन वहां भी उसको अच्छा नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस पे हम चर्चा करें। तो व्हाट इज द इंडियन सिनेरियो? ये तो दुनिया की बात कर रहे थे हम, अब बात करते हैं भारत देश की। भारत देश की बात करते हैं तो 640 जिलों में से, आउट ऑफ 640 डिस्ट्रिक्ट्स, 240 districts are having the level of stunting more than 40%। 240 जिलों में हमारे 40% से ज्यादा लोगों की, ज्यादा बच्चों की हालात ये है कि उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, क्योंकि उनको खाना प्रॉपर नहीं मिलता।
और ये लेवल है, मतलब 10% से लेके 70% तक का आप कहो, कहीं 10% का वेरिएशन है, कहीं 20 का है, कहीं 40 का है, कहीं 50 का है। तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन ऐसी भी है जो ट्राइबल बेल्ट्स हैं, जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, रिसोर्सेज बहुत कम है, तो 65% तक आपकी स्टंटिंग। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और इसके लिए आप लोगों को, आई डोंट नो हाउ मेनी पर्सन्स हैव got any chance to move throughout India. I got chance to travel the rural areas, particularly in Bihar, बंगाल और उड़ीसा। जब रिमोट में चले जाओगे, जो आपकी पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन आ जाती है, तो उनकी एवरेज हाइट 5 फीट भी नहीं होती है। आप सोचो कि एवरेज हाइट भी 5 फीट ना हो, उनकी हाइट उससे भी कम हो, उसका रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन है बढ़ती पॉपुलेशन, घटता खाना और उसकी गुणवत्ता। दिस इज द मेन रीजन। मैंने देखा वहां पर उड़ीसा में, बड़ा रिमोट में चला गया मैं, कि एक एक आदमी की 3 3 शादियां होती हैं। यू विल सरप्राइज टू नो दैट। हरियाणा वाले तो बड़े सोच के हैरान होंगे कि 3 मैरिज। यस, एट द एज ऑफ 18 to 20, देन आफ्टर 25 to 30, देन थर्ड इज अराउंड 35। ये उनका कस्टम है कि वो 3 मैरिज होती, तीनों लेडीज एक साथ रहती हैं, तीनों के बच्चे एक साथ रहते हैं। घर में कमाता कौन है? लेडीज, आदमी नहीं कमाता। बड़ी बुरी सिचुएशन। आज मेरे पास मेरे फोटो मेरे ऑफिस के लैपटॉप में है, ऑफिस के डेस्कटॉप में मेरे पास उनकी फोटो है। यदि आप देख लो तो आप हैरान रहोगे ये क्या है। वेरी वेरी बैड सिचुएशन। तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सर्वे करवाया कि 2015-16 में सर्वे कुछ और था, और 2021 के आसपास फिर किया, तो उसमें क्या चेंज आए? जो नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट, जन्म दर, जैसे पैदा हुए बच्चों की मौत, 1,000 बच्चों पे कितने बच्चों की मौत होती है, ये करीब करीब 30% थी। और 30 से घट के ये 20-21 में ये 25%। गवर्नमेंट जो डिफरेंट प्रोग्राम चलाए माल न्यूट्रिशन को सॉल्व करने के लिए, उसमें से आंगनवाड़ी एक है, मिड डे मील दूसरा है। ऐसे ऐसे प्रोग्राम हैं जो हर हाथ को काम, हर घर को खाना, इस तरह के प्रोग्राम जो चलते हैं, उससे फर्क इतना पड़ा कि 5% के आसपास जो माताएं थी, जो जिनके बच्चे होने थे, जो लेडीज थी, उनको खाना ढंग से मिला, तो कुछ उसमें सुधार होने की गुंजाइश हुई, कुछ सुधार हुआ। ऐसे ही इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो 1,000 बच्चों का है, उसमें भी कुछ सुधार हुआ। 5 साल से छोटे बच्चों की मौत है, उसमें भी कुछ सुधार हुआ। और जो मैं स्टंटिंग की बात अभी कर रहा था, छोटे 5 साल से बच्चों की, उसमें भी कुछ सुधार हुआ है। वेस्टिंग में भी, सीवियर वेस्टिंग में तो इतना नहीं हुआ, तो कुछ, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी रहेगी। जैसे 5 साल से छोटे बच्चों का ओवरवेट है, बॉडी मास इंडेक्स अमंग वोमेन्स है, इसके भी सिचुएशन 18 साल से नीचे वालों की कुछ थोड़ा बहुत सुधार है। और औरतों में बॉडी मास इंडेक्स 25 साल से ज्यादा में उल्टा हो गया है, उनको ओवरवेट की प्रॉब्लम बढ़ गई है ड्यू टू नॉट गेटिंग बेटर फूड। ऐसे ही आदमियों में भी है। और अनीमिया की सिचुएशन तो, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो आदमी हैं, चाहे वो औरतें, सभी की सिचुएशन अलार्मिंग सिचुएशन। आप लोगों ने कहीं देखा भी होगा, यू हैव सीन एट सम प्लेसेस दैट एनीमिक पेशेंट्स आर मोर इन हॉस्पिटल्स, दे नीड ब्लड। उनके बॉडी में ब्लड नहीं बनता है, बहुत कम बनता है, और ये बड़ी बुरी सिचुएशन है। मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, छोटी एज की मैरिज is contributing more in this case. If a girl child, she got married below the age of 18 and she is not getting proper food,
what happened when she get pregnant? One more, एक बच्चा उसके पेट में है, उसको भी खून की जरूरत है, उसका पहले से ही पूरा नहीं है, उसको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, उसको कैसे मिलेगा? तो उसमें दो केसेस हो गए, एनीमिया अमंग चिल्ड्रन, एनीमिया अमंग वोमेन। तो ऐसे केसेस में हम देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है आप आयरन पिल्स लीजिए, आयरन की गोलियां दी जाती हैं, लेकिन गोली खाना ही समाधान नहीं है। यदि उनको प्रॉपर फूड देते रहें तो वो उनके साथ ये सिचुएशन नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जहां भी आप जाएं, इस बात को जरूर समझाएं कि हमें ये काम नहीं करने हैं, हमें प्रॉपर खाना खाना है, प्रॉपर फूड देना है, और चाइल्ड मैरिज को रोकना है। चाइल्ड मैरिज को रोकना हम सब की जिम्मेवारी। इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए भाई, बड़ा स्लो चलता है, क्या बात? अजय, क्या प्रॉब्लम है भाई? हेलो। स्लाइड मूव नहीं हो रही? हाँ जी डॉक्टर साहब, एक बार क्लिक करके मूव करो और थोड़ा सा इंग्लिश में ज्यादा रखना है, थोड़ा बहुत हिंदी में रखेंगे तो सभी को समझ हाँ, में आ होगी जाएगा। होगी। हाँ जी डॉक्टर तो इसको सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स सम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज। आप लोगों ने बात देखा होगा अखबार में, न्यूज चैनल्स पे, कि हमने 17 गोल फिक्स किए हैं। भारत सरकार 17 गोल को फिक्स करके उन पे हम काम करें, और हमारे देश की जनता को वी कैन प्रोवाइड ए बेटर फूड, वी कैन सोल्व दिस माल न्यूट्रिशन इशू। आपको मैं बताऊं, 17 में से 12 गोल्स ऐसे हैं जो आपके माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं। इसमें आप देखो, दो कलर हैं, एक ब्लू है, एक दूसरा है। तो ये दूसरे कलर में 12 को इंडिकेट करता है, जेंडर इक्वलिटी, गुड हेल्थ, जीरो हंगर, नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी का मतलब गरीबी को खत्म करना। जीरो हंगर का मतलब हमें भूख मिटानी है, खाना प्रॉपर देना है। गुड हेल्थ, वेलबींग, उसी बात पे है, तेरे जेंडर इक्वलिटी, हमें कोई भेदभाव नहीं करना है। क्वालिटी एजुकेशन, ये सब कहाँ से आएंगे? ये सब आएंगे पॉपुलेशन कम, कंट्रोल में, और अच्छा खाना, न्यूट्रिशनल फूड। न्यूट्रिशन फूड अच्छा होगा तो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम सोल्व होगी। ये हमारा गोल रहेगा, हम इन पे काम करेंगे। कुल मिला के एक एक पॉइंट पे आके रुक जाते हैं कि हम, when we will provide a better food to the population, they will be having good health, there will be no hunger, no poverty, they will do more work, they're able to do more work, and ultimately the country will progress. चाहे आप सेहतमंद आदमी हैं तो अपने बच्चों के लिए अच्छा कमाओगे, अच्छी एजुकेशन दोगे, अच्छी फैसिलिटी दोगे। कुल मिला के बात यह है कि सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ नहीं है। इस बात पे आते हैं। और सेहत अच्छी कहां से आएगी? अच्छा खाना खाने से, मेहनत करने से। अब देखो आप, वर्ल्ड वाइड जीडीपी लॉस कितना होता है माल न्यूट्रिशन से? रवांडा, युगांडा, बांग्लादेश, जाम्बिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, कोंगो, और सबसे आगे इंडिया, 12 बिलियन यूएस डॉलर पर एनम। इतना खर्चा, मतलब इतना जो जीडीपी का लॉस हो जाता है हमारा, हमारे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा इसको सोल्व करने में जाता है, लेकिन फिर भी हम उस लेवल पर नहीं आ पाते हैं। और जरूरत क्या है? पैसा खर्च, $1, $1 यदि आप इस काम पे खर्चते हैं तो हमें 16 का बेनिफिट मिलता है।
15-16 times we are getting benefit. हमें ये करने की जरूरत है। यदि हम प्रॉपर खाने पे भी ध्यान दें, हमारी पॉपुलेशन को इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें, हम कंट्री को बहुत आगे ले जा सकते हैं। जो आज हमें आयुष्मान भारत कार्ड बना करके इलाज में आप देखो कि क्या गड़बड़ियां हो रही हैं, कैसे होता है, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि प्रॉपर खाना होगा तो बीमारी बहुत कम पड़ेंगी। तो ये बहुत जरूरी है। इसके लिए मेज में हम क्या क्या काम करते हैं, हम उस बात पे आते हैं। मेज में क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हम कुछ पैरामीटर्स पे काम कर रहे हैं। एक है क्वालिटी प्रोटीन मेज। क्वालिटी प्रोटीन मेज में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन ज्यादा होते हैं, 2 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसके बाद हमने एक तीसरा एसेंशियल अमीनो एसिड भी शुरू कर दिया, वो मिथाइनिन। लाइसिन ट्रिप्टोफैन दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। यदि हम ट्रिप्टोफैन बढ़ाते हैं, लाइसिन अपने आप बढ़ जाता है। लेकिन मिथियोनिन के साथ ये बात नहीं है। मिथियोनिन इज नेगेटिवली कोरिलेटेड। जब ये ज्यादा होते हैं तो मिथियोनिन कम मिलता है। लेकिन हमें ऐसे जीनोटाइप ढूंढने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, इसमें तीनों ही एसेंशियल अमीनो एसिड अच्छे मिल जाएं। फिर ये करते क्या है? लाइसिन ट्रिप्टोफैन, जब आप लिटरेचर पढ़ोगे, यू विल फाइंड दैट these 2-3 amino acids are responsible for body building, muscle building। जो आपकी बॉडी में मास बनता है, मेजरली ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, मिथियोनिन का रोल है। Then we will come to provitamin A। Vitamin A, you all know what is vitamin A। विटामिन ए का रोल क्या है? आंखों की रोशनी। विटामिन ए इसके लिए बहुत जरूरी है। जहां पर विटामिन ए की अवेलेबिलिटी नहीं होती, रतौंधी नाम का एक बीमारी आती है, रतौंधी। आप दिन छिपने के बाद कुछ दिखाई नहीं देता, कम लाइट में दिखाई नहीं देता, आंखें बड़ी जल्दी खराब हो जाती हैं, तो ये विटामिन ए की वजह से होता है। और विटामिन ए को कहाँ कहाँ कैसे, हम कहते हैं ना, हरी सब्जियां खानी चाहिए, वेजिटेबल्स खानी चाहिए। जिन बेचारों के पास पैसा नहीं, वो कहाँ से खाए? तो मेज में हम इस पे काम करते हैं, प्रोविटामिन ए के लिए। इसको कैसे बढ़ाते हैं, ये बढ़ के किस लेवल तक आता है और हमें इसके क्या बेनिफिट होते हैं। फिर हम बात करते हैं फाइटिक एसिड की। फाइटिक एसिड ज्यादा होता है तो उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान है फाइटिक एसिड यूज टू चिलेट विद दिस माइक्रोन्यूट्रिएंट आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटासियम एटसेट्रा। इनको इन बाइंडिंग फॉर्म में ले जाता है फाइटिक एसिड, और वो बॉडी को मिलने के बजाय एक्सक्रीटा के थ्रू बाहर, और पोल्यूशन फैलता अलग, मेरी बॉडी को कभी नहीं मिलते हैं। आयरन की गोली खाओ, इससे अच्छा है कि फाइटिक एसिड कम करके उस अनाज को खाओ, ज्यादा बेटर है। तो मैं इन चीजों पे बात करूंगा अब। क्वालिटी प्रोटीन बेस क्या होता है? सबसे पहले हम बायोफोर्टिफिकेशन की बात करें, इज द डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट dense staple crop using the best conventional breeding practices and modern biotechnology without sacrificing the agronomic performance and important consumer preferred traits. In this case, what we do, a crop variety or hybrid that is giving higher yield, we use to introgress one specific trait in that. आप फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक फील्ड कॉर्न थी जिसमें लाइसिन ट्रिप्टोफैन कम था। लाइसिन ट्रिप्टोफैन के लिए ओपेक 2 नाम का एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। व्हेन ओपेक 2 इज अवेलेबल या प्रेजेंट इन रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन, आपने पढ़ा होगा कि होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होती है, कि एक क्रोमोसोम के 2 एलील होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव बोलते हैं।
कैपिटल वाले को डोमिनेंट बोलते हैं, स्मॉल वाले को रिसेसिव बोलते हैं। जब वो दोनों कैपिटल ए में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कैपिटल लेटर वाले बोलो आप डोमिनेंट टाइप होंगे, तो उसका एक्सप्रेशन कुछ अलग है, वो कुछ और बोलता है। लेकिन ये कहता है कि जब ओपेक टू जीन इज प्रेजेंट इन रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन, मतलब दोनों अलील होंगे, दोनों ही रिसेसिव होंगे, तभी ये ट्रेट एक्सप्रेस होगा। यदि एक भी आपका डोमिनेंट टाइप आ गया तो एक्सप्रेस नहीं होगा। तो इसके लिए हमें जो फील्ड कोण थी उसमें आइदर इट वाज हेटेरोजाइगस कंडीशन फॉर दैट अलील ओपेक टू, और इट वाज डोमिनेंट टाइप। तो हमें इसमें करना क्या होता है, इसको रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन के लिए आप जब देखिए ओपेक टू जिस भी जीनोटाइप में है, हमारे पास बहुत सारे डोनर हैं आज की डेट, उससे क्रॉस कराएंगे। क्रॉस करा करके फिर हम F1 आ गया, F1 को हम बैक क्रॉस कराएंगे फील्ड को नॉर्मल के साथ। बैक क्रॉस करा के उसको BC1F1 आ गया, फिर उसको दोबारा से बैक क्रॉस कराएंगे नॉर्मल के साथ, कम से कम BC2F2 ले आया। BC2F2 में क्या हुआ कि F1 जो बनाया था उसमें 50% दोनों का जीनोम आया था, आपका फील्ड कोण का QPM का। नेक्स्ट जनरेशन में आपने 50% को फिर उधर से बैक क्रॉस करा दिया, 25% फिर ले आए, 75% नेक्स्ट फिर ले आए, तो उसमें आपका 87.5% जीनोम जो है आपका फील्ड कोण का आ गया। फील्ड कोण की यील्ड ज्यादा थी, हमने पैदावार ज्यादा को सिलेक्ट किया था पहले, कि ज्यादा पैदा देने वाले हाइब्रिड में हमें लाइसिन ट्रिप्टोफैन का जीन डालना है ताकि इसकी क्वालिटी बेटर हो जाए और पैदावार में कमी ना आए, हमारा ये एम था। तो हमने उसको किया, फिर उसको फर्दर सेल्फ करके बिल्कुल होमोजाइगस कंडीशन वाला सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से हम उसमें एक फील्ड कोण में बायोफोर्टिफाइड जीन डाल दिया, द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोफोर्टिफिकेशन फॉर लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दैट particular in that genotype, and we got the best result. We got the result as you will see in this slide. जब आपका लाइसिन ट्रिप्टोफैन की बात हम करते हैं फील्ड कोण में, लाइसिन अराउंड 1.3 और 2% के आसपास होता है पर 100 ग्राम एंडोस्पर्म का, मतलब आपका परसेंट में चला जाएगा। whereas in case of quality protein maize it is around 3 to 4%। आपका 30% 40% उससे ज्यादा होता है। और मोटी मोटी भाषा में इन लोकल लैंग्वेज यूज टू से दैट इट इज ऑलमोस्ट डबल है। तो हम इसको ऐसे ही ट्रिप्टोफैन है, यू कैन सी इन दिस स्लाइड इट इज 55% मोर। और बायोलॉजिकल वैल्यू जो है फील्ड कोण की 45-40% थी, इसकी 80%। प्रोटीन इनटेक यूटिलाइजेशन, जो प्रोटीन सीधी मक्का में होता है आपका, उसका 40% ही आपके शरीर में हजम होता है खाने के बाद, जबकि क्वालिटी प्रोटीन मेज में डबल हजम होता है, 80% के आसपास आपके शरीर को हजम होता है। इसका मतलब जैसे हम कहते हैं ना दूध है, दूध में भी आप कंपेयर करते हो कि बेस्ट मिल्क कौन सा है, मदर मिल्क इज बेस्ट, काउ मिल्क इज बेस्ट, हम ऐसे बोलते हैं। तो सीधी बात है कि दूध जितना हल्का है वो पीने से हजम होता है, उसका प्रोटीन आपकी बॉडी को मिलता है, 100% डाइजेस्ट होता है, 90% डाइजेस्ट होता है, ये बोलते हैं। तो इसीलिए क्वालिटी प्रोटीन मेज भी इसके कंपैरिजन में ऐसी बात करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1 गिलास दूध का आपने पिया, एक क्वालिटी प्रोटीन मेज की रोटी खाई, दोनों का काम बराबर है। आपके शरीर को 90% मिला या 80% मिला, आपकी बॉडी को जितनी जरूरत थी प्रोटीन मिल गया है। तो इसका मतलब हमारा क्वालिटी प्रोटीन मेज तो बहुत अच्छा है, खाने में बहुत अच्छा है। और आगे मैं इसके चीजें और बताऊंगा, आगे आएंगी तो उसमें आप देखोगे क्या क्या, लास्ट कुछ स्लाइड आएंगी तब हम बात करेंगे। ये कुछ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन
इन्होंने क्वांटिफाई किया भी हाउ मच मेज वी नीड टू ईट टू cover up our lysine and tryptophan requirement per day requirement. According to WHO, the maize required amount in 100 gram of maize, lysine 265 milligram, tryptophan 67. In normal maize, not in QPM. According to this data, the adult needs 2 kg for lysine requirement per day and tryptophan 280 gram. This maize is required. Whereas when we used to take QPM, मतलब ये अडल्ट की रिक्वायरमेंट थी और हमें इतनी मक्का कितनी खानी पड़ेगी, 800 ग्राम मक्का, 800 ग्राम और 418 ग्राम ट्रिप्टोफैन को कवर करने के लिए। जबकि क्वालिटी प्रोटीन मेज की बात आएगी तो ये 800 से घट के 500 हो गया, 400, ऑलमोस्ट आपका 40% के आसपास ग्रेन की रिक्वायरमेंट कम हो। ये नहीं, देखो 500 ग्राम, मैं तो नहीं मानता कि 500 ग्राम मक्का कोई खा सकता है रोज की, नहीं खा सकता। आप 500 नहीं 100 ग्राम खाओगे, 100 ग्राम 50 ग्राम खाओगे, उसके साथ कुछ और भी खाओगे तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। आप कुछ 2-3 चीजें मिला के खाते हैं, आप पल्सेस भी खाते हो, दाल भी खाते हो, चावल भी खाते हो, रोटी भी खाते हो, सब चीजों को मिला के आपकी जो रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। अकेला मेज खाए तो ये सिचुएशन नहीं, इसने बताया कि अकेले मेज से आप 800 ग्राम से 500 ग्राम पे आ जाओगे, इतना दाना कम हो जाए। ये जरूरी नहीं इंसान के लिए, कोई और भी खा सकता है। तो सिमिलरली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ऑल्सो has produced the same data. They have provided the same data. In this case also again 500 grams of maize is required to complete the lysine requirement per day. तो मेरा कहने का मतलब है कि इंस्टीट्यूट जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो स्टडी की उसके बेस पे ये बताया यस यूपीएम कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सॉल्विंग द माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम। तो हमें क्यूपीएम पे काम करना चाहिए, उनका ये था और हमने इस पे काम किया, इसको बहुत आगे बढ़ाया है। इसका एक सीधा सा एग्जांपल है, ये बड़ी पुरानी स्लाइड है कि आप एक सूअर को पिगरी, पोल्ट्री, आपकी फिशरी और कैटल, इन सब में रोल रहता है। तो पिगरी की स्लाइड है कि ये जो पतला सा आपको सूअर दिखाई दे रहा है N4 मीन्स नॉर्मल मेज इसको फीड किया और दूसरे को क्वालिटी प्रोटीन मेज फीड किया। एक जैसे उन्होंने टाइम लिया 20 दिन का 21 दिन का कि एक पर्टिकुलर डाइट सेम क्वांटिटी फील्ड कॉर्न की इसको देते रहे, सेम उतनी ही क्वांटिटी क्यूपीएम की इसको देते रहे। आफ्टर 20 डेज यू कैन सी द रिजल्ट कि एक में क्या चेंज आया, दूसरे में क्या चेंज आया। ये कमाल था सारा क्वालिटी प्रोटीन मेज का, ये कमाल था लाइसिन ट्रिप्टोफैन का। उसकी बॉडी को उसका प्रोटीन का जो पार्ट है वो मैक्सिमम डाइजेस्ट हुआ, और डाइजेस्ट हुआ तो देखो आप उसके शरीर की हालत कि वो मोटा तगड़ा ताजा हो गया, जबकि वो नहीं था। तो इसलिए इसका सबसे बड़ा रोल जो है, वी कैन सप्लाई लेस क्वांटिटी फीड टू पोल्ट्री piggery farms so that we can have more growth, product is ready in less days। कम टाइम में कम दाने के साथ में आपका पोल्ट्री, पिगरी ये तैयार हो जाते हैं, बिजनेस में बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो बहुत सारे जो अभी मैं बात कर रहा था क्यूपीएम की क्या है, बायोलॉजिकल वैल्यू ज्यादा होती है, डाइटरी सप्लीमेंट है उसमें यूज होता है, बहुत बढ़िया रहता है, और फूड सिक्योरिटी को सोल्व करता है, हेल्थ को भी ठीक करता है, और मेज की अडेप्टेबिलिटी तो इट्स ए वाइड अडेप्टेबिलिटी। ओवरऑल क्यूपीएम हैबिट्स जो हैं दे आर वेरी गुड, एक्सेलेंट फॉर सॉल्विंग द माल न्यूट्रिशन इश्यूज। अब इसमें एक सबसे बड़ी बात क्यूपीएम में आती है, बाकी चीजें मैं सब बता दी आपको।
फूड प्रोसेसिंग डज नॉट अफेक्ट क्यूपीएम क्वालिटी। जब आप, ये दाने में होता है, जो आप एस्टिमेशन जितना भी है वो आपका ग्रेन है, ग्रेन से पाउडर बनाया, पाउडर को आपने एनालाइज कर लिया। बट व्हेन वी यूज टू प्रिपेयर चपाती, यूज टू प्रिपेयर दलिया, यूज टू प्रिपेयर खिचड़ी, लड्डू, जलेबी, एवरीथिंग, हम जो भी इसे बनाएंगे, क्या उसमें उसकी क्वालिटी सेम रहती? यस, फूड प्रोसेसिंग डज नॉट अफेक्ट यूपीएम क्वालिटी। दैट आई विल शो इन अ डिफरेंट स्लाइड एट लेटर स्टेज, कि कैसे जब आप इसको पकाते हैं तो बहुत सारे, सब कहते हैं ना सब्जी को बार बार गर्म करने से आपके न्यूट्रिएंट खत्म हो जाते हैं। यस, इट्स ट्रू, लेकिन ये क्यूपीएम के केस में ऐसा नहीं। इस मक्का को जब मैंने सारे एनालिसिस अपने मेरे लैब में मेरे बच्चों से करवा के देखा, आई हैव पब्लिश्ड वन आर्टिकल ऑल्सो, मेरा एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिकेशन है इसके ऊपर, कि ये खराब नहीं होता है। तो ये बड़े ऑनर की बात है कि जो सबसे पहले जो बायोफोर्टिफाइड क्रॉप वैरायटीज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर dedicated to the nation on World Food Day, and out of these 17, 3 were from my institute, and out of these 3, 2 were from my group. I was the leader in 2 LQMS 2 and 3, these 2, and one was developed by my other colleague. I was part in that also. So it was a pride moment for us that Prime Minister has dedicated our product to the nation at that time. बायोफोर्टिफिकेशन में काम करने के लिए जब आपको कहीं सहानुभूति मिले, कोई ये कहे शाबाश आपने अच्छा काम किया है, किसी फील्ड में मिले, तो बड़ा फक्र महसूस होता है। तो ये एक देश के लिए ऐसा दिन था, पहली बार डेडिकेट किए थे, पहली बार की डेडिकेशन में भी मेरे प्रोडक्ट थे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मल्टी न्यूट्रिएंट। मैंने शुरू में आपसे बात की भी, प्रोटीन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, प्रोविटामिन ए, लो फाइटिक एसिड, मैं सभी चीजों पे थोड़ी थोड़ी मैंने बात की पहली स्लाइड में। ये मेरे रिसर्च प्रोग्राम की स्लाइड है। हम काम करते हैं तो मेरा ये था कि मैं सभी को एक बैकग्राउंड में कैसे लेके आएंगे। मैंने इंट्रोग्रेस्ड मटेरियल की बात की, हाउ वी कैन इंट्रोग्रेस्ट ओपेक टू जीन इन फील्ड कॉन बैकग्राउंड, दैट आई एक्सप्लेन प्रॉपरली। नाउ again, we have one line which is rich in lysine and tryptophan. Then we introgressed again provitamin A in that. Similarly, जैसे हमने किया ओपेक 2 का बताया मैंने, ऐसे ही प्रोविटामिन ए का जो जीन हमने इसमें डाला, और इसकी जो लिमिट है 5 ppm की है, 5 ppm से नीचे का हम इसमें नहीं ले सकते, उसको हम प्रोविटामिन रिच नहीं बोलते हैं। ऐसे ही फाइटिक एसिड पे ये भी हमारा 2.5% से लेस होना चाहिए, 2.5 मिलीग्राम पर ग्राम। तो इसके अंदर देखो, मैंने 3 लाइनों को रेड किया है। रेड उसमें किया, लाइसिन इज मोर देन 2.5%, ट्रिप्टोफैन इज मोर देन 0.7%, प्रोविटामिन ए इज मोर देन 5 ppm, एंड फाइटिक एसिड दैट इज एज लो एज around 2.5%. Either it is 2.6, 2.5 or 2.06. You can see all these parameters in one background. हमने एक के अंदर ही मसल बिल्डिंग वाला प्रोग्राम भी, आंखों को ठीक करने वाला भी, और आयरन जिंक रिच जो मिलता है वो भी एक ही बैकग्राउंड में हमने इकट्ठे कर दिए। दैट इज द अचीवमेंट ऑफ माई टीम। आई कंग्रेचुलेट देम कि उन्होंने मेरे लिए काम किया मिल करके। We have done this. One of my PhD student has worked on this, and now he's going to complete his degree program, PhD degree on this aspect. So after some time we will publish this data also. इसी तरह से हमारे पास जो मैंने पहली स्लाइड में बताया था कि मिथाइनिन कंटेंट, मिथाइनिन में इट इज हैविंग नेगेटिव कोरिलेशन विद ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन। ये इसका उल्टा है, जहां लाइसिन ट्रिप्टोफैन ज्यादा होते हैं वह मिथाइनिन कम होता है। बट वी वर एबल टू डू सम स्पेसिफिक वर्क, कि हमारे पास कुछ लाइनें ऐसी हैं जिनका
लाइसिन ट्रिप्टोफैन भी ज्यादा है और उनके साथ साथ मिथाइनिन कंटेंट भी ज्यादा है। हम वो जो नेगेटिव कोरिलेशन जिसको ब्रेक कर पाए और कुछ मटेरियल हमेशा डेवलप कर पाए। तो ये नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में ऐसे मटेरियल को जो स्पेशल मटेरियल उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। वी हैव सबमिटेड दिस केस फॉर 5 लाइन्स फॉर रजिस्ट्रेशन एट NBPGR and recently I got a mail that in one meeting they have cleared one line. They have discussed some cases and they have included one line, the last line QIL 4-2311, that has been registered as a special germplasm in NBPGR in my name. And rest of the 4 lines, first 4 lines, they will consider in next meeting. So hopefully they will also got cleared by that meeting and I will be able to register my 5 new germplasm. तो अभी हम जब बात कर रहे थे ना कि हम ब्रीडिंग करते हैं कैसे ब्रीडिंग करते हैं, मैंने पहले ही बताया ओपेक 2 को हम कैसे इंट्रोग्रेस करते हैं। तो मेज में ब्रीडिंग प्रोग्राम में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड होता है पेडिग्री ब्रीडिंग। शायद आपने यू आर ग्रेजुएट or postgraduate also, maybe some students. You all know that how we are following pedigree method. In every breeding method is developed in maize. Maize is the master crop, or you can say this is the model crop where genetics is developed. इसमें जो पेडिग्री ब्रीडिंग हम करते हैं, इसमें दूसरे पेडिग्री ब्रीडिंग से थोड़ा सा डिफरेंस है। आपके जो प्योर लाइन्स और ये कहोगे सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में और क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में देयर आर ऑल टुगेदर डिफरेंट ब्रीडिंग मेथड्स आर यूज्ड। सेल्फ पोलिनेटेड में आपने किया कि आपने 2 डाइवर्स लाइनों को लेके क्रॉस बनाया, क्रॉस बना करके F1 आ गया, F1 को आपने सेल्फ किया, सेल्फ करके आपका F2 आ गया, F2 में आपने बेटर प्लांट सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करके उनको सेल्फ किया और आगे उनकी जनरेशन ग्रो करते गए और 5-6 जनरेशन के बाद में जब बिल्कुल आपको लगा कि प्योर है, you are ready to release that as a new variety after particular proper testing. That is followed in case of self-pollinated crop. But in cross-pollinated crop, this is only one step. When we need new inbred line, मतलब new parental lines, हमें जर्मप्लाज्म डेवलप, इसको हम जर्मप्लाज्म डेवलपमेंट बोलते हैं अपनी भाषा में, तो उसके लिए हम पेडिग्री फॉलो करते हैं, पेडिग्री ब्रीडिंग बोलते हैं। पेडिग्री मेथड लिया, 2 डाइवर्स लाइनें ली, 2 डाइवर्स लाइनों को, वो भी एक ग्रुप में होनी चाहिए, वो मैं भी आपको 1 मिनट बाद बताऊंगा कि हमने उसको क्रॉस बनाया, क्रॉस बना के सेम फॉलोइंग दैट मेथड कि हम उसको स्टेबल करके और वहां ले आए। वहां नाउ इट इज नॉट सेग्रीगेटिंग, इसमें हर तरह के पौधे, उसका टेसल है, उसका ग्रेन कलर है, आपका पौधे की हाइट है, पौधे में जो कोब कहाँ लगता है वो सब की हाइट एक जैसी आ गई है, पत्ते का एंगल है वो भी ठीक हो गया है एक जैसा सब में, या टेसल की जो ब्रांचेस थी, टेसल की ब्रांच एंगल थे, वो सब के ब्रांच उसके टेसल कलर था, ये सारे ट्रेट जो हैं एक लाइन में सब एक जैसे हो गए। इट मीन्स लाइन इज प्योर नाउ, इट इज फिक्स्ड। तो हम उस लेवल पे ला करके उन लाइनों को अब दूसरा स्टेप शुरू होता है, क्योंकि मेज तो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, उसको डायरेक्ट आप एज वैरायटी यूज नहीं कर सकते, उसकी यील्ड तो बहुत कम होती है। नाउ वी विल गो फॉर हाइब्रिड ब्रीडिंग। हाइब्रिड ब्रीडिंग के लिए आपको मेल फीमेल के ट्रेट याद होने चाहिए। मेल फीमेल के लिए हम उसमें से कैटेगराइजेशन करनी है कि मेल वाले में आपका पोलन 1 वीक तक रहता है या नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि मेल बहुत अच्छा है, यील्ड बहुत अच्छी दे रहा है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दे रहा है, उसके साथ हुआ गया, दैट इज गिविंग पोलन फॉर ओनली 2 days, सो हाउ वी कैन गो फॉर हाइब्रिड ब्रीडिंग, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपका पोलन जो है कितने 7 दिन से 8 दिन तक जरूर से जरूर मिलना चाहिए, ताकि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ब्लॉक में हमें प्रॉब्लम ना आए।
सबसे पहला क्राइटेरिया मेल पेरेंट का ये होता है। दूसरा, मेल और फीमेल की फ्लावरिंग दोनों की एक साथ आनी चाहिए, उनमें ज्यादा डिफरेंस ना हो। नहीं तो मेल का पोलन आगे चला गया, फीमेल की सिल्क जो भुट्टा लगना है उसके ऊपर जो बाल आते हैं ना, उनको सिल्क बोलते हैं, वो नहीं आई, और वो नहीं आई तो फिर पोलन किस काम का? पोलिनेशन कैसे होगा? उन दोनों की फ्लावरिंग मैच होनी जरूरी है। उसकी सिल्क इमरजेंस का जो टेसल टेसल बोलते हैं मेल पार्ट को, वो दोनों एक साथ आने चाहिए। इसी तरह से फीमेल में होता है कि फीमेल का पौधा मजबूत होना चाहिए, रूट स्ट्रोंग होनी चाहिए, स्टॉक स्ट्रोंग होना चाहिए, वो गिरे ना, आंधी तूफान आए तो वो गिरे ना, जड़ से मजबूत हो, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट उसकी पैदावार फीमेल लाइन की ज्यादा होनी चाहिए। When female line is strong, it is more productive, then your hybrid seed production will be successful and economical. आपका मेल से पोलन आएगा, उसके ऊपर पोलिनेट होगा, जो सीड की यील्ड आएगी that depends upon female line only. If female is more productive, then seed yield will be more. If more seed is produced in 1 acre or 1 hectare, it means the cost will be reduced and farmer will get the cheap seed. Company or organization will be benefited by producing more seed. So these are the some major traits. हमें उस जर्मप्लाज्म में ये भी देखना होता है। और इसके साथ साथ एक मेथड होता है हेटेरोट्रॉपिक ग्रुपिंग, वो मैं अभी आएगी एक स्लाइड उसमें बताऊंगा। तो ये हमने कुछ क्रॉसेस बनाए, नई लाइनें डेवलप की, जो मैंने अभी आपको बताया, इंट्रोग्रेशन के थ्रू नई लाइनें डेवलप करी। ये जो P3, P15, P14 ये लिखा है, ये क्या है? ये हमारे पॉपुलेशन में हमारा DH, आपने सुना होगा डबल अप्लॉयड मेथड। डबल अप्लॉयड मेथड के थ्रू हमारी लाइनें डेवलप थी, ये उसकी पर्टिकुलर लाइंस थी। उनके पास साथ हमने 2 टेस्ट यूज किए, उनको 2 ग्रुप में बांटने के लिए, मेल और फीमेल में बांटने के लिए। उससे जो क्रॉस बनाए उसमें बेटर परफॉर्मेंस किसकी आई? आप देखो कि हमारे पास यील्ड का लेवल देखो आप, 100 क्विंटल, मतलब 100 क्विंटल कहने में कितना बड़ा है, 1 हेक्टेयर में बहुत ज्यादा है। मेज की प्रोडक्टिविटी इतनी आती है। हमने सिर्फ उन्हीं को लिया है जो आपके 80, 90, 100 क्विंटल वाले हाइब्रिड हैं, उनको सेलेक्ट किया है। अब इस डेटे को लेके हम एनालिसिस करके, ये देखो मेरा 2 जगह सेम सेट था, लुधियाना में और सेम सेट मांड्या में, तो कोई जीनोटाइप आपकी मांड्या में बहुत अच्छी आई है, तो कोई आपकी यहां पर आई है। ये मेरे 202, 203 आई यूज दिस एज चेक। ये मेरे ही हाइब्रिड हैं, अर्लियर वी हैव रिलीज these hybrids and you can see the performance at Mandya. The performance of both these hybrids is more than 10 ton or 100 quintal. So these are the very good hybrids. और अब हमें इस लेवल को बीट करके आगे लेके जाना है। इस लेवल को ऊपर आएंगे तभी हम कुछ नया बता पाएंगे। तो ये 2 सेट थे मेरे लाइन के, जैसे मैंने पहले बताया, ये दूसरा है, ये इनब्रेड लाइन, ये पेरेंटल लाइंस की यील्ड है। इसमें भी हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है कि हम 20 क्विंटल से नीचे की लाइन को रखेंगे नहीं, उसको हम यूज नहीं करेंगे। तो 20 क्विंटल कम से कम मुझे यील्ड होगी तभी मैं उसको यूज करूंगा ब्रीडिंग प्रोग्राम में, अदरवाइज आई विल लेट इट डाउन, मैं इसको स्टोर में डाल दूंगा, नहीं यूज करूंगा। ये दूसरा सेट था मेरा, ये बैक क्रॉस ब्रीडिंग का प्रोग्राम था। इसमें देखो आप, लुधियाना और करनाल में यील्ड का लेवल देखिए आप, यील्ड का लेवल आपका 125 क्विंटल, 124 क्विंटल, 120 क्विंटल। सो दिस इज ए वेरी गुड मटेरियल विच आई हैव डेवलप्ड ड्यूरिंग लास्ट 5 years। अब इस प्रोग्राम को, इन लाइनों को साइंटिफिक वे में, एक तो मैंने बताया मेल फीमेल कैसे बनाते हैं, साइंटिफिक वे में हम उसको बोलते हैं हेटेरोटिक ग्रुपिंग, टू कैटेगराइज ऑल दिस मटेरियल्स इनटू 2 बेसिक ग्रुप्स, मेल और फीमेल। ए मींस फीमेल, बी मींस मेल। So we will divide that scientifically, that material into 2 different groups. We have taken LM13 and 14, 2 tester, well-known tester. एक हाइब्रिड के पेरेंट हैं, LM13 फीमेल है, LM14 मेल है, जो
मेल के साथ मेरी लाइन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आएगा, इसका मतलब मेरी लाइन फीमेल की तरह काम कर रही है। और जो फीमेल के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आएगा, इसका मतलब मेल की तरह काम कर रही है। तो इसको हम एनालिसिस करके इस डेटा को, द डेटा विच आई शोन इन अर्लियर स्लाइड्स, दैट डेटा अगेन यूज्ड टू एनालाइज दैट थ्रू टेस्ट क्रॉसेस, we have seen the combining ability, specific combining ability, and then we have divided this in different rhetoric groups. तो ए वाली जहां ए लिखा है वो मेरी लाइन को फीमेल चली जाएगी, और जो बी लिखा है वो मेल में चली जाएगी। तो इस तरह से मेरी कुछ लाइनें फीमेल बन जाएंगी, कुछ मेल बन जाएंगी, और फिर उनको मैं आपस में क्रॉस कराऊंगा। दैट डेफिनेटली दोज क्रॉसेस विल बी हैविंग वेरी गुड यील्ड। फिर हम उसको आगे लेके जाएंगे हाइब्रिड को डेवलप करके रिलीज करने के लिए। सो ये एक प्रोसेस है। आपको सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में जो मैंने पहले स्लाइड दिखाई, सिर्फ पेडिग्री क्रॉस से आपकी लाइन डेवलप होगी और वहीं से वो वैरायटी बन गई। लेकिन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में उसके आगे भी दो स्टेप हैं। अब यहाँ आए, यहाँ के बाद उसको हेटेरोटिक कॉम्बिनेशन बनाएंगे, फिर टेस्ट करेंगे। तो इसमें ज्यादा टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके बाद हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। हमने ये IQMH LQMH1 एक हमारा पहला हाइब्रिड था QPM का। दिस वाज रिलीज्ड फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट एंड दिस इज वेरी गुड हाइब्रिड फॉर नॉर्दर्न हिली जोन। नॉर्दर्न हिली जोन जो हमारा है पहाड़ी एरिया, हमने पूरे हिंदुस्तान को 5 जोन में बांटा है। पहाड़ी एरिया जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और पहाड़ी एरिया उत्तराखंड का। इसके साथ साथ जो हमारी 7 सिस्टर स्टेट हैं वो सारी पहाड़ी एरिया है, वो सारा कवर है, इस जोन में आता है। दूसरा जोन है नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन, NWPZ। इसमें आपका आता है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी और उत्तराखंड का जो प्लेन एरिया है, जो पंतनगर का एरिया है, तराई बेल्ट है, ये एरिया प्लेन है। इंडो गैंगेटिक प्लेन बोलते हैं इसको हम। ये आया। तीसरे जोन में हम आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन। जो नॉर्थ ईस्टर्न का मतलब ईस्टर्न पार्ट, आपका ईस्टर्न यूपी है, बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, झारखंड है। ये जो प्लेन जोन वाला एरिया है नॉर्थ इंडिया में, उधर वाला एरिया, ये NEPZ, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन, जोन 3 का नाम दिया हमने उसे। फिर जोन 4 है पेनिनसुलर इंडिया, आपका कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। दैट इज नोन एज पेनिनसुलर जोन, पठारी, पठार का जो एरिया था वो सारा है। और एक सेंट्रल वेस्टर्न जोन में मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, और राजस्थान, ये 3-4 स्टेट आते हैं। इस तरह से हमने कैटेगराइज किया है, और जो मटेरियल जिस जोन में बैठ रहा था उसके लिए रिकमेंड करते हैं। तो दिस पर्टिकुलर हाइब्रिड वाज रिकमेंडेड फॉर कल्टीवेशन इन नॉर्दर्न इली जोन, that is giving very good yield along with the quality parameters, and that is being tolerant to Caeolopatylus। इसे जो मक्का में कीड़ा लगता है, गोब का कीड़ा कहोगे, अच्छा, इसका एक नुकसान बहुत करता है, इसके लिए टॉलरेंट है। और TLB, ट्रसिकम लीफ ब्लाइट, एक डिजीज आती है इसमें, इसके लिए भी टॉलरेंट था, जो ये पहाड़ी एरिया में ज्यादा आती है। और बेंडेड लीव्स एंड सीथ ब्लाइट भी इस एरिया की बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है, इनके लिए टॉलरेंट थी। तो इस तरह से हमारा ये हाइब्रिड बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। ये इसका सीड बहुत बिकता है। ये एक मेरा हाइब्रिड है IQMH203। आपको देखो चमकदार दाना है इसमें, चमकता है। और इस हाइब्रिड की एक ब्यूटी है, इसका डाटा तो आपने पीछे देखा है। ये रेनफीड कल्टीवेशन बहुत अच्छा काम करता है, पानी की बहुत कमी है, पर्टिकुलरली राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये जो एरिया है इसमें ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और इस साल इस हाइब्रिड के लिए 20,000 क्विंटल हाइब्रिड सीड का राजस्थान गवर्नमेंट ने टेंडर दिया हुआ है। तो कंपनी पीछे भाग रही हैं, और ये बहुत ही, मतलब आप ये कहो कि मार्वलस हाइब्रिड है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आती है इसमें। ये मेरे साथी दिल्ली में हैं, उन्होंने, जो मैं बात कर रहा था OPEC2 जीन को इंट्रोग्रेस करने की, ये इंट्रोग्रेस्ड हाइब्रिड उनका
हमारा एक HM4 बड़ा पॉपुलर हाइब्रिड था बेबी कॉर्न का, और इसके साथ ग्रेन में ही बहुत अच्छा था। दे कन्वर्टेड दिस इन QPM वर्जन। तो ये बहुत ही उम्दा हाइब्रिड उन्होंने डेवलप कर दिया। ऐसे ही HM8 है, पूसा HM9 है। ये तो थे सिर्फ QPM के लिए पहले वाले। अब बात आ गई QPM प्लस प्रोविटामिन ए, लाइसिन ट्रिप्टोफेन प्लस प्रोविटामिन ए, थर्ड ट्रेट देव इंट्रोड्यूस्ड। जो मैंने पीछे बात की थी कैसे कि मार्कर असिस्टेड बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कैसे करते हैं। उस मेथड का यूज करते हुए दे हैव डेवलप्ड दिस हाइब्रिड एंड दे हैव रिलीज्ड इट। ऐसे ही पूसा HQPM5, दिस इज अगेन लाइसिन ट्रिप्टोफैन प्लस प्रोविटामिन ए, थर्ड ट्रेट देव इंट्रोड्यूस्ड एंड दिस हैज ऑल्सो बीन रिलीज्ड। ये भी ऐसा ही है। और ये एक विवेक QPM हाइब्रिड है जो उत्तराखंड हिल्स के लिए है, नया हाइब्रिड है, बहुत अच्छा है। ये एक स्टेट के लिए रिलीज हुआ था। फिर बात आ जाती है हमारी लो फाइटिक एसिड की, थर्ड ट्रेट। जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि फाइटिक एसिड को हमने कम करना है। ये आप देखो मैंने बड़ा क्लियरली लिखा है कि 75% of the total phosphorus is stored in the form of phytic acid in maize. Phosphorus is stored in the form of phytic acid. Phytic acid, phosphorus in poultry or animal waste causes surface water pollution. जब ये बॉडी को हजम नहीं होगा, बाहर आएगा, सरफेस वाटर को, जो बाहर पानी है चल रहा है, उसको खराब करता है। और इट इज चिलेटिंग विद आयरन, जिंक, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो ये आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये आपकी बॉडी को नहीं मिलते हैं। चाहे वो पोल्ट्री है, चाहे स्वाइन है, चाहे वो कुछ है कि इंडिया में मतलब मैन भी खाएगा तो भी नहीं। इसके लिए हमने ब्रीडिंग मेथड, अगेन दिस इज द बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड, हाउ वी कैन यूज इट I have explained in case of QPM, and in this case also it is slightly different. A mutant we have identified, that mutant was again taken as a donor parent, and we have crossed this is the main parent, female parent, and introduced that particular gene into the background of that population, and we have developed by using this। हमने बहुत सारे कई हाइब्रिड लेके इस पे काम शुरू किया। एंड ये मार्कर हमारे, अभी आप लोगों को बहुत ज्यादा तो इसमें समझ नहीं आएगा क्योंकि मार्कर कैसे यूज करते हैं, दैट इज बीइंग यूज्ड इन MSc and PhD। यू विल लर्न मोर थिंग्स व्हेन यू विल compete and you will come for higher studies। तो हमने इसमें कैसे काम किया, बैक BC2 मतलब आपको बैक क्रॉस 2, मैंने 2 बैक क्रॉस बताए थे, पहले F1 आया, फिर एक बैक क्रॉस, फिर दूसरा बैक क्रॉस, और फिर इसको F5 तक लेके गए। इट मींस दिस लाइंस आर नाउ प्योर। और उसमें हमने फिर फाइटिक एसिड टेस्ट किया। फाइटिक एसिड वाज एज लो एज इट वाज अराउंड 2% ओनली, एंड वी वर एबल टू डेवलप ए मेन हाइब्रिड। PMH1 को हमने कन्वर्ट कर दिया PMH1LP, मतलब लो फाइटिक वर्जन। और इसका लो फाइटिक वर्जन में देखो कि जो फाइटिक एसिड है वो कितना कम कर दिया हमने, 2.94 से 1.89 पे ले आए, इतने परसेंट कम चला गया है। कितना 36% कम कर दिया है। तो ये हमारी एक अचीवमेंट थी। दिस इज द फर्स्ट हाइब्रिड रिलीज्ड बाय आवर इंस्टीट्यूट इन वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पहला हाइब्रिड हमने इसको रिलीज किया है। बहुत अच्छा हाइब्रिड है, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन के लिए है, जिस एरिया में हम रहते हैं, जहाँ काम करते हैं उस एरिया के लिए है। तो ये प्रोविटामिन ए के लिए हमने काम किया, QPM के लिए काम किया, और ये हमारा लो फाइटिक एसिड का भी हाइब्रिड हमारा आ गया है। फिर उसके बाद हमारे डिफरेंट ब्रीडिंग मेथड्स हम कैसे फॉलो करते हैं, हाउ वी डेवलप्ड आवर जर्म प्लाज्म। एक तो मेज में हाइब्रिड आपने सुने होंगे, हाइब्रिड का नाम सुनते हो आप, इसके बारे में और कुछ नहीं जानते हो। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, डबल क्रॉस हाइब्रिड,
थ्री वे क्रॉस हाइब्रिड। सिंगल क्रॉस में दो पेरेंट होते हैं, पेरेंट वन, पेरेंट टू, एक मेल और एक फीमेल। आपका डबल क्रॉस की बात आती है, डबल क्रॉस मीन्स उसमें दो क्रॉस इन्वॉल्व हैं। तो एक, दो पेरेंट को क्रॉस करा के एक बनाया, दो पेरेंट क्रॉस करा के एक बनाया, फिर दोनों हाइब्रिड को फिर क्रॉस करा दिया, और वो एक डबल क्रॉस हाइब्रिड। एक हाइब्रिड ऐसा होता है कि P1 × P2 हाइब्रिड बन गया, उस हाइब्रिड के साथ एक और इनब्रेड लाइन को क्रॉस करा दिया, वो थ्री वे क्रॉस हाइब्रिड है। तीन तरह के मेज में हाइब्रिड आते थे, अब नहीं आते, आते थे। तो उसमें हमारे इंस्टीट्यूट ने नेशनल लेवल पे डिसीजन लिया कि दो पेरेंट को मिलाकर के जो हाइब्रिड बनाएंगे वो एक तो आसान है बनाना, और सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी इसकी होती, क्योंकि दोनों लाइनें प्योर थी तो मटेरियल बिल्कुल नीट एंड क्लीन आएगा। डबल क्रॉस में एक क्रॉस इधर था, एक क्रॉस उधर था, उसमें आपको ऊपर नीचे हाइट होती है, आपको ये पता नहीं चलता ये हाइब्रिड का सीड है मिक्सचर है, तो किसान मार खा जाता है, किसान के साथ धोखा हो सकता है। ऐसे ही थ्री वे क्रॉस में धोखा हो सकता है। इसलिए हमने ये फैसला किया, वी विल नॉट अलाउ एनी कंपनी टू टेस्ट डबल क्रॉस और थ्री वे क्रॉस हाइब्रिड इन AICRP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोग्राम बेस। हम उसको टेस्टिंग ही अलाउड नहीं करेंगे। और ये न्यूज देन वी communicated with the government that such and such company, there are few companies who are testing something else and they are providing something else to the farmers. टेस्ट में प्योर सीड देते हैं, वहां गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए हम इन चीजों को बंद कर रहे हैं। आगे से मार्केट में लेबल क्लेम के थ्रू सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रॉस हाइब्रिड बिकेगा। दैट डिसीजन वाज टेकन 15 years बैक, और उसकी वजह से आज इंडिया में उस जमाने से मेज की प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इट इज मोर देन डबल, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज के दिन ये करीब करीब 40 मिलियन टन हम क्रॉस कर चुके हैं इसको, और आगे आने वाले टाइम में इसको 50 मिलियन टन भी हम क्रॉस कर देंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया कि जिस तरह वैक्सी जर्मप्लाज्म डेवलप करना है, वैक्सी से क्या फायदा होगा, आपका जो स्टार्च एक्सट्रैक्शन है, और इसे एथेनॉल, आजकल बात सुन रहे होगी भी एथेनॉल बहुत बढ़ता है, मक्की से एथेनॉल बनाया जाता है, गाड़ियों में पेट्रोल में मिक्स होके 20% तक एथेनॉल मिक्स होके जा रहा है। और लास्ट ईयर का डाटा था 45,000 crore rupees has been transferred to the bank accounts of farmers for ethanol recovery। जो इंडस्ट्री है वहां से पैसा आया, वो किसानों को मिला 45,000 crore रुपए, हमारे मक्का के किसानों को। उसके लिए हम एथेनॉल रिकवरी बढ़ाने के लिए वी आर डेवलपिंग द वैक्सी कॉर्न और वैक्सी पोलन। अगेन वही लाइसिन ट्रिप्टोफैन वाली बात है, इट इज अगेन कंट्रोल बाय रिसेसिव होमोजाइगस क्रोमोसोम। तो हमें उस स्टेट में लेके आना है। जर्मप्लाज्म को डेवलप करने के लिए बहुत सारे हाइब्रिड लिए, उन हाइब्रिड के साथ इनका क्रॉस करवाया, क्रॉस करा के फिर हम उसको आगे लेके आए। और ये जिस तरह डोनर थे हमारे, हमने उसमें किया। देन जो मैंने पीछे बताया भी, हम एट्रोटिक पूल बनाए, और पूल बनाने के बाद उसके अंदर हमने लाइनें डेवलप करी। उसके अंदर लाइनें डेवलप करने के बाद जो है हमारा जो अमाइलोपेक्टिन एक कंटेंट होता है, देयर इज that should be more than 90%, which is known as in case of this वैक्सीकॉन। वैक्सीकॉन में माइलोपेक्टिन ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। सक्सेसफुली वी हैव डन दैट इन बोथ ग्रुप्स। तो हमने ये काम करके वैक्सीकॉन पे हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, और मल्टी लोकेशन ट्रायल तक हमारा पहुंच गया है। अभी हमें इसमें से भी कुछ डेवलप हो रहा है। ये हमारे डिफरेंट वर्जन थे। व्हाट वी हैव डन इन केस ऑफ QPM आल्सो, that was field corn data. This is quality protein maize. Quality protein maize, maybe we have introduced this vaccine allele, and what we have found that in all cases you can see हमारा जो था ये फीमेल और ये मेल है, इन दोनों पेरेंट में हमारे पास जो है इतने इतने हम जिस क्रोमोसोम को ये डाटा लिया है, इट इज अवेलेबल नाउ। प्रभु, हे प्रभु, सॉरी, ठंड बहुत ज्यादा भाई, थोड़ा सा।
आप म्यूट हो गए डॉक्टर साहब, अनम्यूट कर नहीं लीजिए। कोई नहीं, थोड़ा सा ठंड से हो जाता है, कभी कभी एलर्जिक हूं मैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें बैकग्राउंड रिकवरी BC2F1 में कितनी बैकग्राउंड रिकवरी की, इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, यू कैनॉट अंडरस्टैंड इन वन स्लाइड और इन वन गो। दिस इज ए लॉन्ग प्रोसेस टू अंडरस्टैंड दिस, कि हमारे पास पहले हमने इसको कंफर्म किया वेदर द इंट्रोग्रेस जीन इज नॉट और देयर। ये हमने जो स्टार लगाए हैं, ये हमारे पास इस इट मीन्स ये पॉजिटिव है, इसमें है ये। फिर हमारी बैकग्राउंड रिकवरी की बात आई, बैकग्राउंड रिकवरी हमने इसमें की है, और कितनी की है ये देखो आप। इसमें बैकग्राउंड रिकवरी देखो इस स्लाइड में, मोर देन 75% इन दिस केस वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड। और फिर नेक्स्ट में हमारा जो टारगेट था उसमें हमने 85-90% तक भी हम आ गए। तो वी आर सेलेक्टिंग दोज where we have recovered more than 90% genome of the particular genotype and with a particular chromosome that is responsible for vaccine। तो ये हमारे फोटोग्राफ हैं हमने जो इसमें सेलेक्ट किए, जिसमें प्रेजेंट थे, जिसको हमने बायो टेक्नोलॉजिकली बायोकेमिकली टेस्ट करके कि जीन भी प्रेजेंट है और क्वांटिटी जो क्वांटिफाई की वो भी प्रेजेंट है। तो ऐसे ही हमारे पास मोलिकुलर ब्रीडिंग का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट में हम काम करते हैं, जो जो अभी एक्सप्लेन किया, माइलोपेक्टिन बढ़ाने के लिए और डिजीज के लिए भी थ्रू मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन और बैक क्रॉस ब्रीडिंग वी आर वर्किंग ऑन दैट एस्पेक्ट। अगेन द सिमिलर सिचुएशन फॉर फोरग्राउंड रिकवरी बैकग्राउंड रिकवरी। मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर नहीं डालूंगा क्योंकि ये एकदम नहीं समझ में आएगा आपको। तो इसमें जो हमारी सक्सेस है, रिकरेंट पेरेंट जीनोम, जो फीमेल पेरेंट हमने यूज किया था, जो हमारा बेसिक हाइब्रिड के पेरेंट थे, उसमें हमारी रिकवरी जो है आप देखो इसमें 93%, 91%, 94%, इन ऑल केसेस वी हैव अचीव्ड। हम यहाँ तक आ गए हैं। एंड अब इसका फिर हमने मल्टी लोकेशन ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड ट्रायल में हमने इसको टेस्ट किया, और उस टेस्टिंग में भी हम बहुत सारे लोकेशन पे इसकी बहुत अच्छी यील्ड आई है। नाउ दिस इज अगेन प्रोग्रेसिंग। ये हमने कन्वर्टेड हाइब्रिड है जो वैक्सी अलील को यूज करके किया है। तो ये थोड़ा सा क्योंकि वाइट बैकग्राउंड में था इसलिए कलर चेंज हो गया इसका। और ये QPM का भी ऐसा ही है। हमारे जो नए हाइब्रिड रिलीज हुए हैं बहुत अच्छे, बाई यूजिंग दैट मोलिकुलर ब्रीडिंग प्रोग्राम हमने इसको रिलीज कर दिया है। अब मैं बात जो मैंने पहले एक स्लाइड में की थी बात, कि लाइसिन ट्रिप्टोफैन दे आर नॉट गेट अफेक्टेड बाय कुकिंग। जब हम इसको प्रोसेस करते हैं, कुक करते हैं, दिन की क्वालिटी में क्या डिफरेंस आता है या नहीं आता है। हमारे पास हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने QPM भी लिया और नॉन QPM जो फील्ड कॉर्न भी दिया। आप चपाती की क्वालिटी खुद देख सकते हो। 203 QPM हाइब्रिड की चपाती कैसे दिखाई दे रही है, टूट नहीं रही, कट नहीं रही, फट नहीं रही, जबकि दूसरे की हार्ड है अपने आप ऐसी हो रही है, चबाने में बड़ी सख्त है। तो दिस इन दिस केस लेस वाटर वाज रिक्वायर्ड टू मेक डो। आटा गूंथने के लिए कम पानी लगा, और चपाती ऐसी थी जैसे हम गेहूं की खाते हैं, ऑलमोस्ट ऐसी चपाती बनी, बढ़िया चपाती बनी। तो फिर हमने इसका शियर फोर्स होता है कि किसी चीज को तोड़ने के लिए कितनी ताकत लगानी। देयर इज ए मशीन बाय विच वी कैन मेजर दैट, कि हमने उसमें चपाती नीचे रखी, ऊपर से उसको दबाया, वो दबती रही दबती रही, और जब वो चपाती टूटी तो उसको बराबर में डिजिटल मशीन में रीडिंग आ गई, दिस मच फोर्स वाज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन दिस। तो एक हमें एक है ना, यहाँ बड़ा लोकल में है कि देसी मक्की, देसी मक्की, देसी मक्की की रोटी सॉफ्ट बनती है, अच्छी बनती है। तो देसी मक्खियाँ मतलब लैंड रेसिस थी वो, और उनकी पैदावार बड़ी कम होती है। तो हमने इसमें लैंड रेसिस भी ली और फील्ड कॉर्न भी लिया और QPM भी लिया, सारे अलग अलग हाइब्रिड लेकर के ये एक्सपेरिमेंट किया था। IQPMH1708, IQMH203, these two are quality protein based hybrid. PMS10, this was field corn or normal hybrid, और व्हाइट हाइब्रिड 574, लैंड रेस को MCFL, ये दो थी हमारी लैंड रेस में। तो एक लैंड रेस में
बहुत कम फोर्स लगी 3.36। भाई वो चपाती आराम से टूट गई। इसका मतलब चबाने में भी खाने में भी अच्छी थी। और क्यूपीएम की भी देखो आप, इट इज अराउंड, मतलब 4 से नीचे इसकी फोर्स लगी। जबकि पीएमएस 10 में 4.77 मैक्सिमम फोर्स, या एमसीएफएल 346 में 5.98 मैक्सिमम मिलेगी। इट मीन्स द क्वालिटी ऑफ chapati in case of quality protein base and lead race देसी मक्की, इट वाज ऑलमोस्ट इक्वल। तो देसी मक्की के कंपैरिजन में इसकी रोटी अच्छी बनती है, नंबर 1। अब बात आती है, हमने उसको टेस्ट किया, जो आटा था हमारा, मतलब दाने से पाउडर बना के उसमें लाइसिन ट्रिप्टोफैन को चेक किया, लाइसिन ट्रिप्टोफैन का, और फिर रोटी बनाने के बाद उस रोटी को फिर तोड़ के बनाया। यू कैन सी ये 4.28 4.12, देयर इज नॉट मच डिफरेंस। स्लाइटली हो सकता है एस्टिमेशन में हो, लेकिन फिर भी आपकी क्वालिटी इंटैक्ट है। इसका मतलब द प्रोसेसिंग इज नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ दिस बायोफोर्टिफाइड मेज। आपकी लाइसिन ट्रिप्टोफैन एज सच हैं। इसका मतलब चाहे आप दाना खाओ, या उसकी पका के रोटी खाओ, या इसका लड्डू बना के खाओ, या इसका कोई और प्रोडक्ट बना के खाओ, ये क्वालिटी इसकी कहीं जाने वाली नहीं है, आपके शरीर को मिलेगा ही मिलेगा। तो क्वालिटी प्रोटीन बेस को ही यूज करो। आप सर्दी में लड्डू बनाना है, कुछ खीर बनानी है, हलवा बनाना है, इट शुड बी यूज्ड एवरीवेयर। इसके बाद सेंसरी सेंसरी ऑर्गन होते हैं भाई। आपने उसका कलर भी देखा, एरोमा देखा, टेस्ट देखी। ये हम इसका एक तरीका टेस्ट करने का, कि सैंपल को हम नंबर दे देते हैं, ये पता नहीं है किसका सैंपल है, ये क्यूपीएम का था, ये दूसरी का था, क्या चीज का था। नंबरिंग दे दी, और 10-20 आदमियों के सामने रख दिया कि आप सब में से कुछ कुछ तोड़ के खाइए, आपको जो चीज पसंद करे, कलर अच्छा है तो वो टिक कर दो, इसकी स्मेल अच्छी है तो वो कर दो, स्वाद अच्छा है तो वो कर दो। ऐसे उनके मार्किंग लगाते आए, और जो ओवरऑल जब उसको टोटल करके बनाया, सबसे बेस्ट क्या था, सबसे बेस्ट मिला हमें क्यूपीएम की चपाती। फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इट वाज लाइक्ड बाय एवरीवन। So overall acceptability was more in case of QPM as compared to the field corn. So this is the best for making chapati, and this is good for your health. This is good for your food. हमने इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनाए। देखो आप, क्यूपीएम की बर्फी हमने बना के देखी, क्यूपीएम के बिस्किट हमने बनाए, क्यूपीएम की जो कुकीज जो आजकल आप देखे बेकरी वाले वो भी आती हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट इसके बनाए हमने। बहुत सारे प्रोडक्ट बना के एक लीफलेट भी रिलीज किया है। इसके बाद एक बुक भी आ गई हमारी, हमने पब्लिश कर दिया है। इट इज अवेलेबल फॉर ऑल। और सबसे बड़ी बात है, कॉर्न साइलेज आता ना, साइलेज की बहुत बड़ी डिमांड है। साइलेज का एक कंसेप्ट बदल गया आजकल, साइलेज विद ग्रेन। जब आपका ग्रेन ऑलमोस्ट मैच्योर हो जाता है, हार्डनिंग आनी शुरू हो जाती है, उसमें सारे पैरामीटर पूरे हो, तब उसको साइलेज में बनाते हैं, और ग्रेन भी साथ डलता है, ताकि पशु को जो राशन की रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी होगी। और सबसे बड़ी बात, जब क्यूपीएम को आप इसके लिए यूज करोगे, तो आपका जो क्वालिटी भी साथ गई, जो पशु के लिए बहुत अच्छा है। तो दिस इज ए वेरी गुड फॉर साइलेज मेकिंग ऑल्सो। सो और साइलेज के ऊपर तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यू कैन सी दी बेलिंग। आपने खेत में कैसे मशीन लगा के, सीधा ही, कोई मजदूर नहीं है, मशीन से ही कट के आ रहा है, ये मशीन से बेलिंग हो रही है, मशीन से पैकिंग हो रही है। इसमें एक या दो ही मजदूर लग रहा है। ये पूरी इंडस्ट्री है, मतलब खेत से लेकर के आपका पैक होके, आफ्टर पैकिंग दिस, आफ्टर 45 days और 40 days यू कैन ओपन इट। टिल देन यू कैन नॉट ओपन इट, इट विल फर्मेंट। जैसे फर्मेंटेशन होती है, फर्मेंट होगी, इसमें बहुत अच्छी स्मेल आएगी, और ये कलर देखो, ये ग्रीन से आपका खाकी कलर हो जाएगा, एंड आपका एनिमल बहुत खुश होके खाता है। जैसे हर आदमी खाने के साथ अचार को जरूर उठाता है, क्योंकि उसकी स्मेल अच्छी आती है, अच्छा लगता है। तो इसको हम अचार बोलते हैं देसी भाषा में। क्वालिटी प्रोटीन मेज इज वेरी गुड फॉर साइलेज ऑल्सो।
So, with these words, I finish my small this PPT और लेक्चर. किसी भी स्टूडेंट को कोई भी चीज पूछनी है, ही कैन आस्क. बच्चों, थैंक यू सर. मुझे लगता है मैंने ज्यादा टाइम ले लिया. नहीं नहीं डॉक्टर नहीं साहब, इट इज फॉर 1 आवर. मैं द टाइम देखा 7:20 हो गया है. Thank you for your valuable insight, sir. Now we'll be moving to the query session. Those who Yeah. have questions are kindly requested to raise their hand feature and when invited, please unmute yourself, turn on your camera and introduce yourself. Ask the query. Participants also may post their questions through the chat box. Sir, we have received one question from Anushka Bharatwal. She is studying in third year BSc Agriculture from Pauri Garhwal University. She Okay. want to ask, is QPM able to minimize protandry cases in maize, and does QPM cause any effects to the soil health or soil quality? And other one is cancelled. We use QPM under sustainable farming. Yes. QPM can be used under sustainable farming. It is not having any adverse effect in soil health. QPM is a normal crop, as good as normal crop. जैसे आपकी दूसरी फसल है, QPM ऐसा ही है. मेज जैसे ग्रो करते हो, पौधे में कोई डिफरेंस नहीं है, आपके कलर में कोई डिफरेंस नहीं है, कल्टीवेशन में कोई डिफरेंस नहीं है. सिर्फ इसकी जो आपकी क्वालिटी जो है, जैसे हम प्रोटीन है, प्रोटीन कब एक्यूमुलेट होता है? प्रोटीन इज एक्यूमुलेटिंग एट द एंड. सबसे लास्ट में आपका प्रोटीन एक्यूमुलेट होता है. तो ये लाइसिन ट्रिप्टोफैन इज द पार्ट ऑफ प्रोटीन. जो प्रोटीन का पार्ट है, दिस इट मीन्स ये तो बाद में जाके एक्यूमुलेट होता है, उससे पहले तो कुछ होता ही नहीं है. देर इज नो एडवर्स इफेक्ट एट ऑल, कहीं पर भी नहीं, ना पौधे के हेल्थ पे, ना सॉइल के हेल्थ पे, ना ह्यूमन के हेल्थ पे. इट इज बेनिफिटिंग ह्यूमन हेल्थ, इट इज बेनिफिटिंग पोल्ट्री हेल्थ, इट इज बेनिफिटिंग पिगरी हेल्थ, इट इज बेनिफिटिंग फिशरीज हेल्थ. आप हर जगह इसका फायदा मिलेगा, इसका कोई नुकसान नहीं किसी भी तरह का. और दूसरी बात, QPM नॉन GM है, GM क्रॉप भी नहीं है. कुछ लोग ऐसा कहते हैं GM क्रॉप फॉरेन जीन. नो, देयर इज नो फॉरेन जीन, दिस इज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन. म्यूटेशन के थ्रू आइडेंटिफाई हुआ था. इट्स म्यूटेंट. म्यूटेंट को हमने रिफाइन करके और यहाँ तक ले आए. तो ये मेज का ही पार्ट है, तो इसमें कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है. यस, पीयूष. Sir, actually, we have another question from Yuvraj. He is asking, how can we use maize as a business or agripreneurship? मैंने आपको 2-3 स्लाइड दिखाई. एक साइलेज का दिखाया. राइट नाउ साइलेज इज ए बिग बिजनेस. आप पूरे पंजाब में मुझे लगता है 50 to 60 साइलेज यूनिट लग चुकी है. साइलेज यहाँ करीब करीब 40, मतलब 40,000 के आसपास पर एकड़ खड़ी मेज मिल जाती है. आपके फ्लावरिंग के कोप बन गया, वहीं से डायरेक्ट मशीन से हार्वेस्ट होके आ जाती है आपके प्लांट पे. आप बेलिंग करके इसको 8 से 10 रुपए पर केजी के हिसाब से आपका साइलेज बिकता है. 1 टन की, मतलब 10 क्विंटल के आसपास का एक बेल होता है. और एक बेल आपका जैसे ट्रक में लद के जाता है, तो इट इज इजीली ट्रांसपोर्टेबल. और ये राजस्थान में, आपके गुजरात में, महाराष्ट्र तक, यहाँ तक जाता है पंजाब से. इट्स ए गुड बिजनेस, नंबर 1. नंबर 2, QPM, पर्टिकुलर QPM के ऊपर आप बिजनेस करना चाहो, QPM फ्लोर ही आपका मुझे लगता है कि 200 ग्राम का एक पैकेट आता है, इसमें मॉल में मिलता है. दैट इज कॉस्टिंग 50 to 60 रुपीज. इससे आप कोई भी चीज बनाओ, आप लड्डू बनाओ, जलेबी बनाओ, बिल्कुल डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट जो आप आटा डाल के बनाते हो, सब बनते हैं. आपके QPM के चिप्स, QPM के बिस्किट, एक अग्रवाल इंडस्ट्री बड़ी फेमस है. और कॉर्निटोस आप सभी ने खाया. कॉर्निटोस मार्केट में मिलते हैं. कुरकुरे आते हैं, ये सब मेज से बनते हैं. तो मेज बेस्ड आपके फूड प्रोडक्ट का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है. एग्री एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत बेटर है. और मेज पे जितनी इंडस्ट्री मेज पे है, स्टार्च इंडस्ट्री, आपकी स्टार्च इंडस्ट्री कितनी बड़ी बिग इंडस्ट्री है इंडिया में.
जगह जगह स्टार्च के मिल हैं, पंजाब में एक है, हरियाणा में एक है, बड़ी बड़ी स्टेट में कहीं 2 हैं, कहीं 4 हैं, बहुत सारे, मोर देन 50-60 स्टार्च इंडस्ट्रीज आर देयर। एथेनॉल इंडस्ट्री, गवर्नमेंट हैज गिवन इंसेंटिव फॉर मेज ग्रोवर्स टू मेज इंडस्ट्रीज। 7 रुपए पर लीटर का जो है गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पैसा दे के मेज बेस्ड एथेनॉल को खरीद रही है, मेज को बढ़ावा देने के लिए। क्यों? कि मेज पानी कम लेती है, क्रॉप, मेज की पैदावार ज्यादा आती है, इको फ्रेंडली है। इससे जो हम पर्टिकुलर जो हमारा खरीफ सीजन है उसमें कम पानी वाली फसल चाहिए, इट इज वेरी गुड फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑल्सो। तो इन एवरी एस्पेक्ट मेज इज फिटिंग। और एक और सबसे बड़ी बात है कि आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेज होती है, उधर नॉर्थ ईस्ट से ले गुजरात तक होती, थ्रू आउट इंडिया मेज पैदा होती है। तो मेज बेस्ड इंडस्ट्री आपकी एथेनॉल इंडस्ट्री है, मेज बेस्ड आपकी ब्रेवरी इंडस्ट्री है, शराब और विस्की बनती है, मेज से दुनिया भर के फूड प्रोडक्ट बनते हैं। और मेज से आप ये देखोगे जितनी आपकी मेडिसिन आती है, गोली आती है, गोली के अंदर जो सफेद सफेद पाउडर होता है वो सारा मेज का स्टार्च होता है। तो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन मेज ओनली। आपके कपड़े हैं, जूते हैं, जो भी चीज बनती है, आप माड़ देसी बच्चे समझते हैं, जो हरियाणा पंजाब वाले, जो कपड़े में थोड़ी सख्ती होती है ना, वो कैसे, वो सारा मेज का स्टार्च यूज होता है। तो बाय यूजिंग मेज इन इंडिया around 1000 products are available in market. In America more than 3000 products are available. So मेज तो अपने आप में एक इंडस्ट्रियल क्रॉप है, मेज बेस्ड तो कोई भी इंडस्ट्री आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन। Sir, we have one of our participant, Piyush. He has raised his hand. So, Piyush, unmute yourself and ask your doubt. या पीयूष। गुड इवनिंग सर। सर आई एम गुड। पीयूष फ्रॉम बिहार। सर मेरा दो क्वेश्चन था। एक तो ये था कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारे मार्केट्स में या मॉल्स में जो भी ग्रेन्स मिल रही है क्यूपीएम की या उसके फ्लोर मिल रहे हैं वो क्यूपीएम की ही है? इसके लिए हमने एक किट डेवलप की है, हमारे जी सर। इंस्टीट्यूट ने एक किट डेवलप की है, वो 5 मिनट में आपको सेग्रीगेट कर देती है। 5 मिनट में आपको डाटा आ जाएगा कि इट इज हैविंग लाइसिन ट्रिप्टोफैन और नॉट, ये रिच है या नहीं है। तो आपको कभी मौका मिले विजिट करने का तो हम आपको डेमोस्ट्रेट कर देंगे, आपको सिखा देंगे। और वो कोई बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं है, 1-2 केमिकल यूज होता है उसमें, बड़ी छोटी सी किट है। और हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में उसके सर किट को तो वो जल्दी तो से हम जल्दी। जैसे मान लीजिए किसी। और ये जो अच्छा तो जितनी पोल्ट्री इंडस्ट्री है, जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो सब उसके पीछे भागेंगे, क्योंकि मार्केट में सेग्रीगेशन जरूरी है। तो आपकी बात बिल्कुल जी। बिल्कुल सच है, पता नहीं चलता है। तो वो पता क्योंकि सर करने के लिए जैसे वो उस कि किट का यूज होगा, वो 2 मिनट 4 मिनट में आपको रिजल्ट दे देगी, यस इट इज एक्सेप्टेबल, इसको हम परचेज कर सकते हैं। ये इसी के लिए हमने वो काम किया है, क्योंकि मार्केट में ये इशू है। तो वी हैव ऑलरेडी एड्रेस्ड दिस, हमने इसको रेडी कर दिया है। जैसे कि सर हमारा फूड्स प्रोडक्ट पे नॉन वेज और वेज का जो हाँ, ये सिंबल एक बार होता है। एक बार जब वो किट पॉपुलर हो जाए ना, पॉपुलर होने के बाद लोगों को पता चल जाए, देन वी कैन पुट मार्का ऑल्सो। फिर मार्का जरूरी हो जाएगा, फिर मार्का आएगा उसमें। सर वन मोर क्वेश्चन कि जो हमारा नॉर्मल मेज है और जो हमारा क्वालिटी प्रोटीन मेज है, क्या इन दोनों के कल्टीवेशन में कुछ न्यूट्रिशन यानी कि फर्टिलाइजर या नहीं नहीं नहीं, कोई कोई इनका कुछ डिफरेंस नहीं, डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। इट इज दोनों में ओके। सेम है। क्रॉप को देखने में, क्रॉप की कल्टीवेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको सिर्फ दाना जो उठा के देखोगे ना यूपीएम का, उसमें डिफरेंस आता है। इसके अंदर थोड़ा सा पार्ट ऐसा होता है जिसमें लाइट पास नहीं होती। जी सर। एक्सरे बोर्ड जो होता है ना, एक्सरे बोर्ड पे नॉर्मल मेज और क्यूपीएम को रखोगे, आप नेट पे सर्च करोगे, मिलेगा आपको कि उसके अंदर से लाइट पास नहीं होती। उसको हम ओपेक बोलते हैं, ओपेकनेस। वो उसमें कितने जी परसेंट, सर। वो जितना मतलब आपका 20-25%, 30% एरिया ऐसा होता है इसमें लाइट पास नहीं होती, दैट इज रिच इन लाइसिन ट्रिप्टोफैन, उसकी वजह से उसकी क्वालिटी में डिफरेंस आता है, बाकी नॉर्मल सब कुछ। थैंक यू सर। नेक्स्ट वन।
Thank you, sir. Sir, we have a doubt from Ankit Malhotra. He is a postgraduate in soil science from Punjab Agriculture University, sir. This question is, sir, is maize wheat cropping system can overtake rice wheat cropping system in near future in India, especially in Trans-Gangetic zones? Yes, why not? It is in taking more areas day by day. आप लास्ट ईयर देखेंगे तो पंजाब में मेज का एरिया काफी बड़ा है, तो इन कमिंग डेज इट विल बी देयर। एथेनॉल इंडस्ट्री जैसे आ गई, फार्मर को क्या चाहिए? फार्मर को सबसे मेन है पैसा, उसको इनकम उसकी बढ़नी चाहिए। और इस बार जो आप हालात देख रहे हैं कि मार्केट में राइस की हालात है, जो पेडी प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट का बहुत स्लो रहा है। रेट हमारा 2300 कुछ रुपए एमएसपी है, लेकिन ये 1600-1700 में राइस बिक रहा है। तो यदि गवर्नमेंट का ऐसा ही रवैया रहा 2 साल 3 साल तक, तो धीरे धीरे जो है किसानों से परेशान हो गए, वेयर ही विल गो। उसको एक अल्टरनेट क्रॉप चाहिए। अल्टरनेट क्रॉप्स खरीफ सीजन में बेस्ट मेज क्रॉप है। तो मेज और वीट का सिस्टम जो है ये अपने आप डेवलप हो जाएगा। इट इज ऑलरेडी डेवलप्ड, ये पॉपुलर धीरे धीरे होता जाएगा। और मेज में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या थी? ये हमारे जो पंजाब हरियाणा की बेल्ट है, यहाँ के लिए लेट मैच्योरिंग हाइब्रिड्स हमारे पास कम थे। लेट मैच्योरिंग का मतलब कि फुल सीजन हाइब्रिड हो, ताकि वो नवंबर तक पक जाए, नवंबर में वीट लगे कट के, तो उसकी पैदावार ज्यादा हो। नाउ वी हैव डेवलप्ड सो मेनी हाइब्रिड्स एंड दे हैव बीन रिलीज्ड। They are giving more than 10 ton or 12 ton yield in AICRP trial, but at farmer field also they are giving 7 to 8 ton yield under adverse weather conditions also। क्योंकि खरीफ सीजन कोई शॉर्ट सीजन नहीं होता है। खरीफ सीजन में कभी बारिश आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी ज्यादा आ गई, कभी कम आ गई। तो खरीफ सीजन बड़ा बड़ा डिस्टर्ब सीजन होता है। और राइस इसीलिए पॉपुलर था कि या तो बारिश हो जाएगी, हम ट्यूबवेल से पानी दे देंगे, उसमें पानी चलता रहता है, स्टैंडिंग वाटर रखना है और कुछ करना नहीं, तो राइस पैदा हो जाता था। लेकिन अब राइस की प्रोक्योरमेंट में इशू आएगा। तो मेज में अच्छा हाइब्रिड है दैट इज कंपीटिंग, और हमने इसके लिए पूरे पंजाब में 3-4 साल से डेमोन्स्ट्रेशन भी बहुत किए हैं, और उसके रिजल्ट भी बड़े अच्छे आए हैं, और उस एरिया में काफी चेंज आया है एरिया में। तो होपफुली इसमें जितना एरिया बढ़ा है उससे हम डबल कर पाएंगे, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वन। Thank you, sir. Sir, next we have a question from Shubham Saurabh, sir. He is a graduate from BHU University. Sir, Okay. how maize is contributing to increasing the milk quantity of animal husbandry, and also explain the biological aspects? This is a question, sir. इसके फॉर दिस दो चीजें हैं। एक तो आपको मैंने साइलेज बताया, ग्रीन फोडर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मिल्किंग एनिमल्स। और जब आपका एडवर्स सीजन आता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड आ गया या एक्सट्रीम हीट आ गया, ये 2 सीजन ऐसे होते हैं जिस तरह की दिसंबर जनवरी में आपको ग्रीन फोडर की प्रॉब्लम आती है। और ऐसे ही आपका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है मई जून में, ग्रीन फोडर अवेलेबल नहीं होता है। ग्रीन फोडर नहीं होगा तो आपका मिल्किंग एबिलिटी कम हो जाएगी। और मेज एक ऐसा है जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, वाटर कंटेंट भी है, टेस्ट भी अच्छा है, डाइजेस्टिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। तो ये चाहे साइलेज खिलाओ या ग्रीन फोडर खिलाओ, मेज का दैट इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट फोडर अमंग ऑल फोडर्स। फोडर क्रॉप में मेज सबसे बेस्ट एनालिसिस की बात की गई है। तो जब आपका ऑफ सीजन होता है उस टाइम हमारे पास साइलेज अवेलेबल है, ऑफ सीजन नहीं है तो आपके पास ग्रीन फोडर अवेलेबल है। इन बोथ केसेस मेज इज प्रोवाइडिंग बेटर न्यूट्रिशन टू एनिमल्स, पर्टिकुलरली मिल्किंग एनिमल्स। तो दूध में तो वो एस्पेक्ट आ गया। दूसरी बात एनिमल हेल्थ की बात आती है। एनिमल हेल्थ में भी जब आप मेज ग्रेन के साथ साइलेज बना रहे हैं अलोंग विद ग्रेन, क्योंकि अब साइलेज विदाउट ग्रेन नहीं बनता है, सारा मेज ग्रेन के साथ बनता है, तो आपका जो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट था वो भी एड्रेस हो रहा है उसमें। जो आपको अलग से दाना देना था वो दाना भी उसमें जा रहा है, तो उसकी भी आपकी कॉस्ट फीड की घट रही है। तो वो भी एक आपकी डेयरीज के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो एनिमल की हेल्थ है, जो उसकी मसल बिल्डिंग है, लाइसिन ट्रिप्टोफैन उसके साथ जा रहा है, तो उसकी मसल बिल्डिंग भी, पशु मजबूत भी रहता है, शरीर से स्वस्थ भी रहता है, देखने में सुंदर होता है, और जो उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ती है। तो मेज इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन मिल्किंग ऑल्सो, इंक्रीजिंग मिल्क ऑल्सो।
Thank you, sir. Sir, we have another question from Ritish. He is in first year MSc student from CSKH PKV University, sir. Sir, question is that, sir, what should be the breeding strategy to convert an elite normal maize hybrid into QPM while maintaining a heterosis and kernel vitrousness, sir? ये मैंने आपको पूरा एड्रेस किया है। कर्नल विट्रसनेस की बात भी है इसमें, तो हम पूरा लाइट स्क्रीनिंग बोर्ड से मैं लेके चलता हूँ। जैसे एक्सरे बोर्ड है, जब भी जर्म प्लाज्म नया डेवलप करते हैं, हम उसके ऊपर रख करके उसमें बिल्कुल माइनर ही रखते हैं। 25% अप टू 25% ओपेकनेस इज अलाउड। हम 25% से ज्यादा ओपेकनेस को नहीं रखते हैं उसमें। और विट्रस मतलब 25% आपका ओपेक होगा, बाकी विट्रस होगा। हार्ड कर्नल होगा, ज्यादा वेट होगा, ईल्ड ज्यादा होगी। हम उसको इंटेक्ट लेके चलते हैं। जो मैंने आपको एक दो स्लाइड दिखाई थी, मोर देन 10-12 टन की जो ईल्ड थी, वो 120-25 क्विंटल की ईल्ड इसीलिए आई है कि मैंने उस मेथड को फॉलो करते हुए विट्रस कर्नल को मेंटेन करते हुए मटेरियल डेवलप किया है, तब आया है। दूसरी बात, जो आपकी ट्रांसग्रेस इसकी इंट्रोग्रेशन की बात है, आप मैंने इतने हाइब्रिड दिखाए, सारे इंट्रोग्रेस थे। तो इंट्रोग्रेशन इज वेरी इजी। ओपेक 2 जीन है आपके, इसके लिए मार्कर अवेलेबल है। इट इज वेरी इजी। और आप लैब में जाने की जरूरत नहीं है, आप फील्ड में बैठ करके आराम से ओपेकनेस चेक कर सकते हो लाइट बोर्ड से। इट इज वेरी इजी। तो दोनों तरीके हैं। मैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग पे मैंने ज्यादा काम किया है, तो उसके मेरे को बहुत अच्छे फ्रूट मिले। और मेरे हाइब्रिड देखो, इट इज थ्राइविंग वेरी गुड, वेरी वेल इन फील्ड ऑल्सो। नेक्स्ट वन। Thank you, sir. Sir, next we have a question from Shivani, sir. She is an MSc graduate. Sir, today the malnutrition is the major problem. How can the biofortified maize help address these issues in practical way? And also next question is this, sir, like malnutrition affects both rural and urban populations today. What strategies can be needed to create the awareness and demand for the biofortified maize among the consumers? आपके पहले क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुका हूं पूरा। मेरी पूरी प्रेजेंटेशन उस पर डिपेंड थी। पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है कि इसकी लाइसिन ट्रिप्टोफैन ज्यादा है, प्रोविटामिन है ज्यादा है, लो फैटिक एसिड कम है। हमने इसको कैसे कैसे करके किया है। तो इसको जब खाएंगे, क्या रिक्वायरमेंट है, मैंने ये भी दिखाया है क्या रिक्वायरमेंट, कितना खाने से इसका काम चल जाता है। वो उस क्वेश्चन को तो कवर कर चुका हूं। दूसरी बात आई है अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन की। अर्बन रूरल पॉपुलेशन में आजकल क्या हो रहा है, एक तो बच्चे फास्ट फूड खाते हैं, नंबर 1। फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड में मेजरली जो यूज हो रहा है मैदा। मैदा के प्रोडक्ट ही लगभग आप कुछ भी खाओ, चाहे पैटीज है, चाहे कोई ऐसी चीज है, वो सब समोसा है, सब मैदा से बनते हैं। लेकिन इस मैदा की बजाय हम मेज का, बायोफोर्टिफाइड मेज को, बायोफोर्टिफाइड क्रॉप को यूज करना शुरू कर देंगे धीरे धीरे। देखो आप, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी हमारे यहाँ एक अनाउंस किया कि श्री अन्ना जो मिलेट्स है, मिलेट्स को यूज करो। मिलेट्स थोड़ा सा कॉस्टली है, अवेलेबिलिटी भी डिफिकल्ट है। मेज तो चीपली अवेलेबल है। मेज में ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं कि अवेलेबल ना हो। आप सर्दी में, हम यहाँ नॉर्थ इंडिया मक्की की रोटी सरसों का साग खाते हैं, वो नॉर्मल मेज की बजाय क्वालिटी प्रोटीन मेज की खा लो आप। क्वालिटी प्रोटीन मेज की चपाती उससे टेस्ट में भी अच्छी है, अच्छा लगता भी है। वो खाओगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है, अच्छा फिर मेज के जो प्रोडक्ट आएंगे मार्केट में, आप अपने घर पे बनाना शुरू कर दो क्यूपीएम से। क्यूपीएम के प्रोडक्ट से आप सर्दी में लड्डू बनाना है, पिन्नी बनानी है, छोटा मोटा और कोई खाने की चीज, हलवा बनाना है, बर्फी बनानी, वो उसको यूज करके कर लो। शहरों में थोड़ा सा फैंसी कल्चर है। आजकल लड़कियां जो है उसको, लेडीज, बिल्कुल आटा उनको ऐसा चाहिए कि रोटी बेलन मारा और बन जाए। वो ने थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मेज और बाजरा की रोटी बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वो भी, अभी इसमें ग्लूटीन नहीं होता है। सबसे बड़ा इशू है, ग्लूटीन ज्यादा होगा तो आपको सीलियक डिजीज होती है। ये ग्लूटीन फ्री प्रोडक्ट है, आपका टेस्ट अच्छा है, आपको खाने में बढ़िया, आपकी सेहत को, और सबसे बड़ी बात एक ऐसी डिजीज से बचा रहा है आपको। तो ये चाहे अर्बन पॉपुलेशन से रूरल पॉपुलेशन, इट इज गुड फॉर हेल्थ ऑफ एवरीवन। आइदर इट इज लेडी, आइदर इट इज child less than 5 year, more than 5 year, or old person. It is good for all. Anyone else? Thank you, sir. Sir, we have many questions. Some more questions, sir. If you permit, please, we will ask.
कोई बात नहीं, 5-7 मिनट और लगा लो, दे देते हैं, कोई अभी तो बैठे हैं। Okay, sir. Sir, we have a question from Tejas Kumar, sir. He is a PhD in plant pathology, sir. How can the extension services and policy interventions be strengthened to scale up biofortification as a sustainable solution to malnutrition in Karnataka regions? And government has already taken one step ahead in this case. Government has insisted that 20% demonstrations, whichever government institution is providing to farmer for demonstration purpose, minimum 20% will be on biofortified crops. Not only in maize, for other crops also it is mandatory. तो पहली बात तो फार्मर फील्ड पे पहुंच जाएगा, नंबर 1। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी, it is depending upon the state governments, how they are taking seriously. In midday meal or Anganwadi, if they allow more QPM products in midday meal and Anganwadi, then the biofortified crop will thrive at any cost, at every step, in every villages, every cities. ये आप लोग अपने स्टेट में, you can request your governments, you can write letters to them. It will be definitely included and it will benefit all. Thank कोई you, और sir. है? एक दो और Sir, देख लो। yes, sir. We have a question from Palvi, sir, from Bihar. Sir, can we use QPM seeds again next year, or we should buy the new seeds for sowings? For hybrid crops, every year you have to purchase new seed. This is a hybrid crop, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। क्रॉस पोलिनेटेड में हाइब्रिड ही काम करता है, वैरायटी यील्ड कम होती है, जो हमारी कंपोजिट और सिंथेटिक्स हैं अब वो मिलती भी नहीं है, तो इसलिए हाइब्रिड का सीड तो हमें नया ही लेना पड़ेगा। आइदर यू कैन डेवलप एट योर ओन फील्ड, आप एक एरिया देख लो जहां पर आइसोलेशन डिस्टेंस 400 मीटर का रखना होता है, एक मेज के फील्ड से दूसरा फील्ड 400 मीटर का डिस्टेंस, मतलब आधा किलोमीटर दूर होना चाहिए, आप वहां पर सीड प्रोडक्शन कर सकते हो। तो उसमें आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, 50-60 रुपए केजी के हिसाब से आप सीड प्रोड्यूस आपका हो जाएगा, इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं आती है। जो सीड आपको 500 रुपए किलो मिलता है वो 10 टाइम्स लेस में आप प्रोड्यूस कर सकते हो, और उसको यदि आप सेल करोगे तो आपको अच्छा पैसा भी मिल जाएगा, ये पॉसिबल है। कोई और है तो बताओ। Thank you, sir. Sir, we have a question from Gadia, sir. She is from Gujarat. Sir, is there any disadvantage of biofortification? क्या चीज, क्या फिर रिपीट करना? Sir, is there any disadvantage of biofortification? डिसएडवांटेज? नो, नो डिसएडवांटेज, कोई डिसएडवांटेज नहीं है। कोई हमने फॉरेन जीन नहीं इंट्रोड्यूस किया, कोई फॉरेन केमिकल यूज नहीं किया, ये तो नॉर्मल आप ब्रीडिंग का पार्ट है, हम इसको कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, इट इज 100% सक्सेसफुल, सो नो एडवर्स इफेक्ट। Sir, Yuvraj asking question, sir. Sir, like best QPM varieties for Uttar Pradesh, is there? उत्तर प्रदेश, recently we have released IQMH 214. It is for western UP, and for eastern UP it is different, IQMH 206, 211. These are the recently released hybrids, अभी अभी रिलीज हुए हैं। इसका सीड एक सीजन के बाद मिलना शुरू हो जाएगा, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी जल्दी कुछ कंपनी के साथ मेरा MOU साइन हो जाए ताकि वो सीड बना करके मार्केट में दे दें। Sir, next we have a question from Tejas Kumar, sir. Like, how can the development and large-scale adoption of low-phytate maize hybrids improve micronutrient bioavailability in human and animal nutrition while maintaining the farmer profitability and market-level challenges must be addressed to successfully integrate these hybrids into diverse Indian agroecological and farming systems? इसके अंदर जो है एक ही बात है कि उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जहां आप करोगे, सीड विलेज कंसेप्ट एक हमारा होता है कि उस गांव में दूसरी तरह की मेज ना हो, एक गांव पूरा ग्रो कर ले, उससे उसकी क्वालिटी खराब नहीं होगी, रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन मेंटेन हो जाएगी, तो अदरवाइज दूसरा पोलन निकलेगा तो खराब हो जाती है। तो
और क्रॉप कल्टीवेशन में देर इज नो डिफरेंस, देर इज नो डिफरेंस इन यील्ड। आपके ना ही यील्ड में डिफरेंस है, ना क्रॉप कल्टीवेशन में डिफरेंस है। एक ही ध्यान रखना है कि उसके आसपास दूसरी मक्का 400 मीटर का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करना होता है। और वो मेंटेन करने का बेस्ट तरीका है कि आप लार्जर एरिया अडॉप्ट करो। 50 एकड़ इकट्ठा है गांव में जहां लगाना है, वो पूरा एक हाइब्रिड लगा लो, ताकि चारों तरफ से दूसरा पोलन ना गिरे, क्वालिटी खराब ना हो। इट इज सेम इन केस ऑफ क्यूपियम, it is same in case of Vexicon, it is same in case of low phytate, it is same in case of Provitamin A। जो भी रिसेसिव होमोजाइगस क्रोमोसोम वाले हैं, जितने भी ट्रेट हैं, उन सब के लिए सेम स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, और जहां भी करोगे ये सक्सेसफुल है। Thank you, sir. Sir, we have another question from Krishna Kumar Raghuvanshi, sir. Sir, nutritious and yield different between white and yellow varieties of maize. Which type of variety is good for human consumption? Yellow. Yellow is good because in case of yellow, this beta carotene is more. In case of white, there is no beta carotene. For eyes, it is always good. आपको आंखों की प्रॉब्लम येलो मक्का खाने से कभी नहीं होगी, जबकि व्हाइट मेज खाने से आपको आईज की डिजीज होने के चांसेस हैं। आपको जो प्रोविटामिन ए नहीं मिलेगा व्हाइट में, तो इसके लिए फॉर दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट येलो इज गुड। अदरवाइज लोगों की टेस्ट है वो आपका येलो के साथ बना हुआ है। इफ यू आर टेकिंग प्रोविटामिन ए, विटामिन ए कंटेंट इन ग्रीन वेजिटेबल्स, देन यू कैन टेक व्हाइट ऑल्सो, एंड देर इज नो डिफरेंस इन yielding ability of white as well as yellow, both are equal। जर्मप्लाज्म दोनों के लिए अवेलेबल है, दोनों के हाइब्रिड अवेलेबल हैं। पर्टिकुलर पॉकेट कंपनी डेवलप करती है प्रोडक्ट पर्टिकुलर पॉकेट के लिए। आपका 1000 हेक्टेयर 2000 हेक्टेयर है, तो कंपनी काम करके वहां प्रोडक्ट डालती है। ऐसे ही पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। वी आर वर्किंग ऑन व्हाइट मेज, वी आर वर्किंग ऑन येलो और ऑरेंज मेज ऑल्सो। सो सभी के लिए काम होता है, यील्डिंग एबिलिटी सेम। हाँ जी, कोई और बताओ। है तो इट इज ऑलमोस्ट 8 PM, तो हमें वी शुड गिव सम टाइम टू ऑर्गेनाइजर्स ऑल्सो। कोई 5-10 मिनट उनको भी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। अभी के लिए कुछ क्वेश्चंस नहीं है। कोई बात नहीं, आई एम अवेलेबल फॉर एवर। जब भी किसी को कोई क्वेरी है तो थ्रू अजय यू कैन सेंड टू मी, आई विल आंसर, Okay, नो Dr. प्रॉब्लम। Sab, ओके सर। okay, excuse me, Chetri sir. I have received a query from Tejas Kumar, PhD student in plant pathology, and his question is: How can the development and large-scale adoption of low-phytate maize hybrids improve micronutrient bioavailability in human and animal nutrition ये मैंने while maintain? अजय इसका मैं आंसर दे चुका हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। Okay, Dr. Sab. So participants, if you have any more queries, please ask in the chat section, or either you can raise your hand. तो मुझे हम लगता है चाहते आज हैं के कि लिए डॉक्टर तो साहब, हाँ, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है क्यूरीज पूछे, क्योंकि उनका क्यूरीज हाँ, क्लियर कोई होगा बात तभी। नहीं। हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन को कम भी टाइम मिलेगा तो चलेगा, लेकिन बच्चों की क्यूरीज नहीं रहनी चाहिए। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ जी। कोई ओके, इसके लिए हम अवेलेबल हैं। अमर सिंह पूछ रहे हैं क्यूरी डॉक्टर साहब कि विच हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज इज बेस्ट फॉर पंजाब गुरदासपुर रीजन? IQMH 210 और IQMH 207, IQMH 202, 3 hybrids we have released for this region: 202, 207 and 210। 210 is the latest one, it is very good hybrid। आपको कुछ टाइम के बाद इसका सीड मिलना शुरू हो जाएगा। और कोई स्टूडेंट यदि सीड प्रोडक्शन में इंटरेस्टेड है, कोई अपनी छोटी कंपनी लॉन्च करना चाहता है, लॉन्च कर चुका है, दे कैन कम टू मी, दे कैन मीट मी, आई विल गाइड देम प्रॉपरली। आपको क्या सीड कहाँ से लेना है, कैसे करना है, वो आपको गाइडेंस। और गुरदासपुर वाले तो आ ही सकते हैं, इट इज वेरी नियर टू मी। Okay, तो sir. Thank you so थैंक much for your यस चेत्री incredible सर, and यस। insightful session, sir. Your expertise in maize breeding and biofortification has given us a clear roadmap how science can solve challenges in nutritional security. We are truly grateful for the time and knowledge that you have shared for us today. I would like to thank you
and our organizing director Ajay Kasana sir for his vision bringing this 30 days national training program in this session. Finally, a big thank you to the participants who are actively engaged and asking their thoughtful questions. We look forward to see you tomorrow for another day learning at day 11. Jai Hind. Jai Hind. Thank you so much, Taksa, to bless our audience. And uh, definitely, it was a great session, an in-depth session about the biofortification and about maize breeding. And we are looking forward to have such more sessions for our audience in the coming future. And thank you so much, all the participants, for coming. And you can mark your attendance. The link has been shared in the chat section. Thank you so much, Taksa. Okay, thank you, Ajay, for giving me a better opportunity, good opportunity to interact with students. So many students asked some question, and I am happy to able to answer that. By chance कोई ऐसी बात भी आ जाए तो I can check, and again you can ask me any question. Okay, thank you. बहुत बहुत धन्यवाद, Taksa. Okay, okay. Should I leave now? Yes, sir, please. Okay. Participants, the meeting is end now, and you can fill your attendance, mark your attendance. The link has been shared in the chat section, and whoever fill their attendance, you can leave the meeting. Thank you so much, and we will meet at the same time tomorrow, and we will have some more session from the experts of the ICR and other establishments. So keep learning, keep growing, and see you. Jai Hind.